Am I audible to everyone? Is there anybody facing any issues? Yes, sir, you are audible. All right, thank you. All right. So, how are you all? Everybody is okay? I hope everybody should be okay because आपने ज्वाइन कर लिया तो जाहिर है ओके होंगे तभी किया है. Nice, mashallah. Thank you, Maham. Anybody else? Okay, guys, I've got a question for you people, and I would really appreciate if everyone among you responds to this question, or as more people would like response, it will be great. So my question is, what are your expectations from this workshop, and what were your thinking approach or thought process while registering for this workshop? So I would take volunteers. Anyone? Yes, ma'am, please. Sir, I think someone's mic is on. Shahnaz, can you please turn off your mic for a while? Thank you. Assalamu alaikum, sir. I am Maham Ashman and I am currently pursuing Bachelor's in International Relations. And my sole reason and purpose to register in this workshop is that nowadays I am deeply interested in research work. And as you know, for the student of IR, research is very essential and crucial skill which we need to have अगर हमें अपने IR में करियर को बूस्ट करना है. तो ऑफ कोर्स मेरा रजिस्टर करने का मकसद ये था कि मैं अपने रिसर्च के जितने भी कॉन्सेप्ट जो भी थोड़े से ग्रे एरिया में थे, लाइक आई हैव लर्न रिसर्च methodology एज अ पार्ट ऑफ माय फिफ्थ सेमेस्टर करिकुला. वहां पर मुझे जो भी लूप होल्स थे, जो चीज समझ नहीं आई थी, मैं बस ये चाहती हूँ कि वो सब मेरा अब क्लियर हो जाए, कि मैं रिसर्च को लेकर बैठूं तो मेरे दिमाग में बेसिक्स क्लियर हों कि रिसर्च होती है, किस तरह कंडक्ट होगी, कोई इशू है तो उसको इस तरह एड्रेस करना है, ताकि मैं फिर जो भी अपने टॉपिक पे रिसर्च करूँ वो स्मूथली हो सके. थैंक यू. All right, thank you so much, Maham, for your comprehensive answer. Obviously, this workshop, as you know, as we advertised it, like basically uh, focusing on the fundamentals of research, like basic concepts that are, foundational for this research process. So obviously, we will be discussing that inshallah in this workshop, and we will be providing a complete research procedure from selecting a topic to the data analysis and data reporting. With that, we will also be covering different terminologies and different concepts that are very important in research. While understanding, these topics will be very important for you people to understand before conducting a research. So before we get into that, I would like anybody else to answer that. I think Farman Saeed has raised their hand. Yes, Farman, please unmute yourself and respond. Assalamu alaikum, sir. My name is Farman Said. I'm doing my MS in electrical engineering. मैं जब रिसर्च की बारी आई MS कोर्स के बाद, तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि किस तरह रिसर्च करें. सुपरवाइज़र गाइड करते थे, लेकिन बिल्कुल मुझे नहीं समझ आ रही थी. और मेरा जो MS का ड्यूरेशन था वो 2 साल की बजाय मैं ज़्यादा वो कर चुका हूँ. लेकिन अभी मैंने कुछ सीखना स्टार्ट किए हैं.
ग्रोक से मैंने उसको कुछ कहा कि मुझे CNN के रिलेटेड जो है वो कुछ वो दे दे। सारा कोड वगैरह हर चीज़ मेरे पास आ गई। मतलब मुझे अब ये लग रहा है कि मैं मतलब इसमें कुछ कर सकता हूँ रिसर्च में। लेकिन मुझे एक गाइडेंस चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए फ्रॉम द स्क्रैच, कि किस तरह से आपने टॉपिक को लेके चलना है, रिसर्च गैप आइडेंटिफाई करना है, एंड हाउ टू यू नो पब्लिश पेपर, पेपर तक आप किस तरह से लेके जाएं। तो मुझे एक थोड़ी सी मेंटोरशिप चाहिए। तो मेरे सुपरवाइजर तो बाहर चले गए थे, तो मेरा उनसे इस तरह रब्ता नहीं है ना। तो आई एक्सपेक्ट दैट आई विल गेट expert after attending this workshop. This is my expectation. I hope ये काम करे। Thank you. Right, nice, Farman. It's ni really nice to hear that you already have been trying to understand this research process and research thing at your own, and it is unfortunately in Pakistan, like I have always noticed and observed this that students usually get less attention from their supervisors while they research, and whenever they get stuck into something, तो जाहिर है फिर they turn to supervisors, and sometimes rather most of the times supervisors जो होते हैं वो उनको गाइड करने के बजाय खुद ही काम पे लगा देते हैं कि go do this, go do that. So this is unfortunate in Pakistani situation, and most of our students doesn't really know after even graduation about the research. So that is again something alarming. And the primarily purpose of conducting this workshop and the series of other workshops that I'll be conducting from now on, inshallah. So my goal is to build a community of students who can produce the kind of research that could be practically applicable in the primary for organizing such workshops. As far as you're concerned regarding literature review, finding gap, and selecting topic is concerned, definitely we will be going to discuss this in this workshop, and this workshop is particularly about this कि आपने टॉपिक कैसे सिलेक्ट करना है, टॉपिक को सिलेक्ट करने के लिए रिसर्च गैप चाहिए, वो कैसे मिलेगा, एंड ऑल दैट. So obviously we will be doing that. With that, we have some written responses. Let me give a response from Arisha Halim. She says, I expect this research workshop to enhance my practical skills for designing and analyzing studies. I also hope to learn new tools that will make my research more efficient and impactful. All right, Arisha, inshallah, we will be focusing. I'll be giving you practical work, practical tasks. Since our today's session that is more kind of theoretical, and it is to build your basic understanding of how research would work and how we will go about research. So from tomorrow onwards, inshallah, we will be having practical activities, practice-based activities where you people will be working on something in on your own for a couple of minutes, like for 5 to 10 or 15 minutes, so that you can actually do something, and then I review it and give you feedback accordingly, so that you can know that where you did something good, where were you right, and where is the kind of area of improvement, or the space to improve, right? So inshallah we will be doing that as well. We have Ahmad Ali who has raised hand. Yes, Ahmad, please. Ahmad. वालेकुम सर, आवाज़ आ रही वालेकुम है मेरी? सलाम. जी जी. यस. सर ऑलरेडी मैं दो दूसरी रिसर्च पे काम कर रहा हूँ। एक ऑलरेडी कंप्लीट हुआ है, दूसरी रिसर्च पे हूँ, लेकिन उसकी एनालिटिकल एनालिसिस पे मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। क्योंकि मैं स्पीसीज पे जाता हूँ तो वहाँ पर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक तो ऑलरेडी हो जाता है, लेकिन एनालिटिकल एनालिसिस में बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। तो इस वजह से अगर आप मुझे इसमें हेल्प करें तो बहुत अच्छा होगा। और दूसरा ये कि सर मुझे
फर्स्ट पेपर पब्लिकेशन के लिए कौन से आर्ट जर्नल सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं इसकी? All right. So, I think your voice is distorting, maybe. So, I think you need help in two things. One, selecting a publication, and second was, I think, all right, you mentioned that you were working on two research papers already, and you are stuck with analytical, statistics, right? Okay, so as far as SPSS is concerned, we will overview that. Obviously, that is not the scope of this particular research, but obviously we will be talking about some tests and we will be doing these tests, or rather, I will be explaining how to do these tests. Obviously, SPSS अगर आपके पास है, तो you would follow the steps and you can these steps and follow these steps and do the statistics tests for by your own, but if you do not have SPSS, तो ज़ाहिर है थोड़ा सा difficult हो जाएगा, but certainly we will be doing कि कब कौन सी टेस्ट करनी चाहिए, right? Anybody else who would like to add into it? Okay, Naveed Khan hai, he is saying that to understand the different aspects of research, and inshallah we will be able to understand the theme of this niche. All right, inshallah, we will be be able to do that as well. All right, anybody else? All right, anybody has any other issues or anybody would like to say something? Farman Saeed, please. आपने बात कर ली या you want to add something else? All right, Shivani, you want to say something? Sir, I only want to say कि आप मुझे बहुत अच्छी रिसर्च सिखा दें, as I am a group leader in my final year research project. तो मैं उसके लिए चाहती हूँ कि मुझे ना बार बार चक्कर ना काटने पड़े सुपरवाइजर के पास या किसी से पूछना ना पड़े। तो आप मुझे हर चीज़ गाइड कर दें, जैसे मैं अगर मास्टर्स भी करूँ तो मैं उसमें भी रिसर्च कर लूँ। ऑल राइट, इंशाल्लाह बाबा, मेरी पूरी कोशिश होगी कि आई कैन नॉट गारंटी कि मैं आपको मास्टर बना दूंगा रिसर्च का, बट या obviously I will try, and obviously it depends on you and how you participate into this workshop, and also uh, you have to kind of डू प्रैक्टिस मच, बिकॉज जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा चीजें आएंगी, एंड देन obviously I'm here for you people to answer any questions, any difficulties you're facing. So inshallah I'll be there for help, and Yes, sir, yes. you are right. Thank you so much, sir, for supporting us. All right. Okay, Amna says, I want to learn research from zero. Inshallah, we will be doing that too. और हम शुरू से आखिर तक इंशाल्लाह रिसर्च को कवर करेंगे, bit by bit, step by step, from zero to the master, inshallah. All right. So it's been 15 minutes that we have been sharing our experiences and expectations. Now, it is time to start the session. Okay, Muskan Makhija says, I would like to add on that nowadays everyone have basic idea of emerging importance of research, but the basic concepts of research are quite confusing, and even one heading for example, there are multiple options to choose. That's quite confusing. Plus, due to increase in AI usage in this generation, number of most of the people have fabricated or limited knowledge, only so to move in from what we need to do, what that we need to make our basic strong. All right. So
your primary focus in this response is that we do not have basic information about research, and people have some fallacies or some misconceptions about research, and when they enter into the research arena, so they get confused, and obviously it is really alarming. So I really understand this, and I would really kind of एक्नॉलेज दैट योर पॉइंट कि लोग तो एआई के चक्कर में बहुत सारी चीजों को फैब्रिकेट कर रहे हैं, एंड देयर इज रियली नीड फॉर दिस काइंड ऑफ वर्कशॉप्स इन पाकिस्तान particularly. So that is the reason that we are here, and inshallah in this workshop you will learn all the basics, and from uh, you will have the step by step guide to start a research and finish it, inshallah. All right, so I'm going to share the screen and we will be discussing inshallah. वाईफाई नहीं चल रहा क्या? All right, guys, is it audible to you all? Hello? Or rather, screen is visible to everyone? Yes, sir. All right, great. Great. So fundamentals of research in social sciences, particularly understanding the ABC of conducting research. ABC से तो आपको पता होगा कि इसको ABC आती है, इसको ABC नहीं आती है. It means from A to Z, we will be covering every step and every aspect of research, inshallah, in this workshop. Clear? Then, this is about what is research, how can we best conduct a research in social sciences, not only social sciences, but obviously since we have people from different disciplines like DPT, like medical sciences and other disciplines. So we will also be, incorporating and putting light on those kind of disciplines as well. And also we also will be discussing the misconceptions about research कि हमारी research के बारे में क्या misconceptions हैं. जैसे for example अभी एक तो बड़ी misconception ये है हमारी कि हमें कुछ चीज़ों का पता भी नहीं होता. हमें लगता है कि हम अगर हमारे पास अगर डायरेक्ट टॉपिक है तो वी कैन डू एनीथिंग एंड वी कैन डू द रिसर्च, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू कंसिडर बिफोर फाइनलाइजिंग योर टॉपिक, और फिर उसके अकॉर्डिंग आगे चीज़ें चलती हैं. सो a lot of misconceptions are there obviously, and we will be discussing that as well. Objectives of this particular workshop is understanding research basics, research design की mastery के how to select a research design and how can be best, what design is appropriate for my particular research. और किसी भी किस्म की आप जब रिसर्च करने लग रहे हो तो आपको कौन सी डिज़ाइन चूज करनी चाहिए वो आप इंशाल्लाह खुद ही चूज कर लोगे कि मेरा ये पर्टिकुलर रिसर्च है तो मैं इसके लिए ये डिज़ाइन यूज करूंगा, तो इट वुड शील्ड पॉजिटिव रिजल्ट्स और द रिजल्ट्स दैट आर नीडेड. ठीक है, उसके बाद ऑब्वियसली डेटा एनालिसिस इज डेटा कलेक्शन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन कंडक्टिंग अ रिसर्च. तो डेटा कैसे कलेक्ट करना है, तो ऑब्वियसली दैट विल बी आल्सो वन ऑफ द key objectives that you people will be able to collect data on your own. Data analysis is another aspect of research which really needs a lot of attention, and we as researchers mostly in Pakistan lack in this kind of proficiency. तो हमारे पास डेटा एनालिसिस की टेक्निक्स नहीं पता होती. जैसे अभी एक भाई फरमान सईद शायद प्रॉब्लली थे, उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं टेस्ट कौन सा करूं ताकि मैं अपनी एनालिसिस कर सकूं, राइट. सो दिस इज अगेन अ प्रॉब्लम, एंड इंशाल्लाह वी विल बी फोकसिंग कि आपको ये सारी चीजें भी क्लियर हो जाएं कि कौन सी टेस्ट, अगर क्वांटिटेटिव डेटा है तो कौन सी टेस्ट कब करनी है ये पता लग जाए. एंड ऑल्सो अगर आप क्वालिटेटिव कर रहे हैं तो उसके भी डिफरेंट एनालिसिस मेथड्स, और कब कौन सा यूज होगा वो करेंगे. उसके बाद there is effective communication. Effective communication is about
कि आप अपनी रिसर्च के बारे में जब किसी को बता रहे हैं, so inshallah after this workshop you will be able to articulate your research in very effective manner inshallah, so that that's the goal of this workshop कि आप अपनी रिसर्च को effectively communicate कर सकें towards others। जैसे किसी रिसर्च कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं आप प्रेजेंटेशन के लिए, या रिसर्च पेपर क्या कहते हैं पब्लिश कर रहे हैं आप, या कोई भी तरीके की आप प्रेजेंटेशन है आपकी रिसर्च को प्रेजेंट करना है, जैसे सेमिनार्स होते हैं आपके, प्रपोजल का सेमिनार होता है, फाइनल सेमिनार होता है, या फिर वाइवा होती है, तो उसके अंदर हाउ यू शुड प्रेजेंट योर रिसर्च, वो इंशाल्लाह हम इसमें कवर करेंगे। ऑब्वियसली इफ यू हैव इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट योर रिसर्च, तो फिर इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट योर रिसर्च और एनीथिंग। ओके, उसके बाद है क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑब्वियसली रिसर्च इज डन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। रिसर्च हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं, एंड ऑल्सो कंडक्टिंग अ रिसर्च नीड्स क्रिटिकल थिंकिंग। और अगर आपको क्लियरली आइडियाज होंगे, कॉन्सेप्ट्स होंगे रिसर्च के बारे में, तो यू वुड बी एबल टू क्रिटिकली एवेल्युएट कि विच मुझे कौन सी मेथोडोलॉजी यूज करनी है, कौन सी अप्रोच यूज करनी है, कौन सी डिजाइन यूज करनी है तो बेस्ट परफॉर्म इन माय रिसर्च। ठीक है, फिर ऑब्वियसली प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इंशाल्लाह हम आपको एक टॉपिक दे, हर कोई अपना अपना टॉपिक चूज करेगा, एंड थ्रू आउट वी विल बी गोइंग के किस तरीके से हर किसी की अपने अपने टॉपिक को रिफाइन करेंगे, और फिर इंशाल्लाह वी विल बी डूइंग रिसर्च। जाहिर है 5 दिन की रिसर्च वर्कशॉप है, इसके अंदर वी वुड नॉट बी एबल टू कंप्लीट द रिसर्च ऑब्वियसली, बिकॉज वी नीड अ लॉट ऑफ रीडिंग्स for one research. So inshallah we will have these kind of practical sessions where you will be able to do something practical, right? उसके बाद है जी टॉपिक्स टू कवर। ऑब्वियसली आज का जो हमारा सेशन है उसके अंदर वी विल बी कवरिंग दिस व्हाट इज पैराडाइम, different paradigms or research approach and design, qualitative research, quantitative research, and mixed method research. So we will be doing inshallah this. ठीक है, so I hope everybody's expectations are clear so far, और सबको पता लग गया है कि what are we going to discuss in this session. All right. So the first question is what is paradigm? तो anybody जिसने कभी ये नाम सुना है paradigm, कभी ये word सुना है? Is there anybody जिसने ये word सुना है paradigm का? पैराडाइम मीन्स के किसी बिगर चीज को हम कहते हैं जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स जो हैं वो चल रहे होते हैं, रन कर रहे होते हैं। All right. Nice answer. Yeah, kind of. Anybody else? Dr. Fozia Jamshed is with us. Ma'am, would you kindly give an input, Dr. Fazia? Faiza rather, sorry. जी जी सर, सर बस पैराडाइम मीन्स के कोई बड़ा कोई जैसे अगर कोई इंस्टीट्यूट है उसमें डिफरेंट किस्म के जो डिसिप्लिन्स हैं वो या कोर्सेज हों, तो उसको जो बिग इंस्टीट्यूट है उसको हम पैराडाइम कहेंगे, और उसके अंडर जो डिफरेंट डिसिप्लिन्स होंगे, कोर्सेज होंगे, वो उसके अंडर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होंगे जो चल रहे होंगे। अ बिगर अम्ब्रेला काइंड ऑफ। हेलो। Yeah, exactly, Dr. Faisal, you're right. And anybody else, I would like to really a couple of more responses, and then we will go. So Okay. we can also say like a particular way of thinking may be considered as paradigm, like the Please. approach towards any subject. Yeah, exactly. Approach towards any subject. Right. Nice. Anybody else? Okay. So let's see what paradigm is.
Paradigm is a set of beliefs and practices that guide researchers in conducting their research. This is particularly about research. Overall paradigm क्या होता है? Paradigm is basically आप लोगों के belief about something. What do you believe about reality? What do you believe about anything? किसी भी चीज के बारे में आपका क्या belief है? That is your paradigm about that particular thing. अब होगा क्या, रिसर्च में क्या होगा कि रिसर्च में ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन प्रोसीजर्स, देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स दैट वी फॉलो, ठीक है। तो उस उन प्रिंसिपल्स को, उन प्रैक्टिसेस को गाइड करता है आपका पैराडाइम, यानी आपका बिलीफ कि जो भी चीज आप रिसर्च के अंदर करोगे तो वो गाइडेड होगी या उसके बैक स्टेज पे होगा आपका पैराडाइम। It encompasses the philosophical assumptions, theoretical frameworks and methodologies. यानी ये encompass करता है। encompass mean कि इसको encircle करता है। It covers philosophical assumptions कि आपकी philosophical assumption क्या है, आपका ये वैसे thought जिसको हम कहते हैं ना कि इसकी thinking क्या है, किसी की भी thinking किसी भी चीज के बारे में, that is your paradigm, right? A research paradigm provides a foundation for entire research process. Ab, as Dr. Faiza said, or as Maham said, paradigm is a bigger thing, and it contains different things. तो paradigm हमारा जो है वो हमारा belief है, और वो belief को follow करते हैं हम, different चीजें उसके अंदर करते हैं, like we have ontology, we have epistemology, we have methodology. ये तीन components होते हैं paradigm के। फिर methodology has again different sub branches that we will be discussing inshallah. So the basic is कि आपका जो paradigm है ना, research paradigm, वो actually होता है आपकी foundation। जैसे किसी भी जगह जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसका क्या करते हैं, ब्लूप्रिंट डिजाइन बनाते हैं, ठीक है। उसकी 3D मॉडल बना ली, या उसको जो आर्किटेक्चरल जो मैप हम जिसको हम नक्शा कहते हैं, घर का नक्शा, ठीक है, तो वो बनाते हैं। तो देट इज एक्चुअली आवर पैराडाइम, क्लियर। और उस पैराडाइम के अंदर ऑब्वियसली घर में जिस तरह डिफरेंट कमरे होते हैं, हर कमरे का अपना एक फंक्शनैलिटी होती है, तो इसी तरीके से पैराडाइम्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। फिर पैराडाइम पैराडाइम में जैसे फॉर एग्जांपल ऑन्टोलॉजी मैंने बताया, एपिस्टेमोलॉजी बताया एंड मेथोडोलॉजी, ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं पैराडाइम के। हम डिस्कस करेंगे कि क्या है वो। सो पैराडाइम्स होते हैं तीन टाइप्स के, एक होता है पॉजिटिविस्ट, एक होता है इंटरप्रेटिविस्ट, और एक होता है क्रिटिकल थ्योरी या प्रेगमेटिज्म। क्लियर बाबा? सो अब अच्छा, अभी तक किसी को पैराडाइम में कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ, मैं उसको ज्यादा थोड़ा सिंपल करने की कोशिश करता हूँ। Anybody needs any clarification on paradigm? All right. So paradigm basically is a bigger umbrella term, and under which there are a lot of different terms that we use in our research process or research endeavor. Not only in research process, rather research terminologies में आपको इन सारी चीजों का पता होना चाहिए ताकि आप अच्छी रिसर्च कर सकें, right? So you are not supposed to write this in your research, but this is the foundation. This is जैसे नक्शा आपके घर का जो होता है वो छोटा सा होता है, आप ऑन पेपर होता है, बट घर इन रियलिटी डिफरेंट होता है। मतलब एक बिगर चीज होती है और उसकी कंपोनेंट्स डिफरेंट होते हैं, घर के कंपोनेंट्स डिफरेंट होते हैं, बट वो घर बना हुआ होता है उस नक्शे के ऊपर। तो पैराडाइम उसका नक्शा है, रिसर्च इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, बट research without paradigm is not possible. Clear? So there are three, as I said, के positivist, interpretivist and critical theory or pragmatic paradigms। तीन types के paradigms हैं majorly, ठीक है। फिर अंदर उसके बहुत सारे डिफरेंट, फेमिनिज्म एक पैराडाइम बन जाती है, फिर पोस्ट मॉडर्निज्म एक पैराडाइम बन जाती है, पोस्ट मॉडर्निज्म एक पैराडाइम बन जाती है। दीज आर यू नो these come under the umbrella term of critical theory, ठीक है। बाकी interpretivist and positivist are two basic terminologies or paradigms. Positivist paradigm is something
they believe that reality is objective, यानी reality सबके लिए एक ही है. Interpretivists believe that no, reality is not objective, rather reality is subjective. हर किसी की रियलिटी उसके एक्सपीरियंसेस पे बेस करती है. हर कोई रियलिटी को अपने एक्सपीरियंसेस के लेंस से देखता है, एक्सपीरियंसेस की आय से देखता है. ठीक है. ऑन द अदर हैंड, जो क्रिटिकल थ्योरी है या प्रेगमेटिज्म है, दे बिलीव दैट रियलिटी इज सोशली कंस्ट्रक्टेड फिनोमेना. यानी सोशल, हमारी सोसाइटी में क्या चीजें हो रही हैं या हमारे इन्वायरमेंट में जो चीजें होती हैं वो एक्चुअली रियलिटी को क्रिएट करती हैं. रियलिटी इन इटसेल्फ एग्जिस्ट नहीं करती. सोशल इन्वायरमेंट जो है वो उसको एक शेप देता है या उसको एक आइडेंटिटी देता है रियलिटी की. ठीक है. या रियलिटी को बनाता है. ठीक है. इन्वायरमेंट रियलिटी को बनाता है. सो वी हैव थ्री डिफरेंट पैराडाइम्स: पॉजिटिविस्ट, इंटरप्रेटिविस्ट एंड क्रिटिकल थ्योरी. पॉजिटिविस्ट जो है वो बिलीव करते हैं कि देयर इज सिंगल रियलिटी फॉर एवरीवन. इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि आस्क व्हेन वी हैव अ पेन, सम काइंड ऑफ पेन, राइट. और हम क्लास में बैठे 10-50 बच्चों को कह रहे हैं कि व्हाट कलर ऑफ दिस पेन इज. तो अब क्या होगा कि मोस्टली बच्चे क्या कहेंगे कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये रेड पेन है तो कहेंगे दिस इज अ रेड पेन. तो सोशल रियलिटी हमारी ये बनी कि ये पेन रेड है, राइट. बट एक तो ये चीज हो गई क्लियर कि एक रियलिटी है, रेड है तो सबके लिए रेड है, ग्रीन है तो सबके लिए ग्रीन है. अगर ये पेन ब्लू होती तो सबके लिए ब्लू होती. दैट इज ऑब्जेक्टिव, राइट. फिर अब दूसरी एग्जांपल लेते हैं हम. ठीक है. एक बंदा खड़ा हुआ है फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर पॉइंट पे. ठीक है. या इसको ऐसा समझ लें कि एक दरख्त है, उससे 10 फीट दूर एक बंदा खड़ा है और एक बंदा खड़ा है उससे 100 फीट दूर. ठीक है. अब अगर हम दोनों की से पूछेंगे कि इस दरख्त की हाइट कितनी है तो दोनों को डिफरेंट नजर आएगी, राइट. जाहिर है जो करीब होगा उसको ज्यादा बड़ा लगेगा, जो दूर होगा उसको छोटा लगेगा दरख्त. ऐसा ही होता है. तो होगा क्या कि अब मैं जो 10 मीटर पे खड़ा था उसको लगेगा कि फॉर एग्जांपल ये दरख्त 15 मीटर का है या 15 फुट का है. तो सिमिलरली जो 100 मीटर पे खड़ा होगा उसको लगेगा शायद कि 10 मीटर का है या 10 फुट का है. ठीक है. तो क्योंकि जितना हम किसी भी ऑब्जेक्ट से दूर जाते हैं तो उतना वो हमें छोटा दिखने लगता है. ऐसा ही होता है, राइट. सो रियलिटी दरख्त की इन रियलिटी जो एक हाइट है वो है ही है. ठीक है. बट रियलिटी जो उस दरख्त की जो हाइट है, जो बंदा 100 मीटर पे बैठा है उसके लिए डिफरेंट है, और जो 10 मीटर पे खड़ा है उसके लिए डिफरेंट है. सो दोनों अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे क्या कर रहे हैं, उस दरख्त की हाइट बता रहे हैं. और दोनों अपनी जगह सही भी हैं, बट दोनों के लिए रियलिटी डिफरेंट है. क्लियर? समझ आई कि इंटरप्रेटिविस्ट कैसे बिलीव करते हैं? Yes, sir. क्लियर. अब आते हैं थर्ड पे, प्रेगमेटिज्म में. ठीक है. अब जो फर्स्ट हमने एग्जांपल दी पेन वाली कि इफ अ पेन, अ ग्रीन पेन इज ग्रीन, सो व्हाई इट इज ग्रीन. अब क्रिटिकल थ्योरी या जो प्रेगमेटिज्म है वो इसको क्वेश्चन करेगा कि इसको किसने, क्या चीज है जो ग्रीन बनाती है. ठीक है. तो नॉर्मली हम क्या कहेंगे, ये ग्रीन इसलिए है क्योंकि बाकी सारे कह रहे हैं कि ग्रीन है. ठीक है. तो ये कहेगा कि ये ग्रीन इसलिए नहीं है कि इसकी कोई प्रॉपर्टी है कि ग्रीन है, इसको ग्रीन होना है. ये ग्रीन इसलिए है क्योंकि हमने इसको नाम ग्रीन दिया है. हम एज अ सोसाइटी, हम एज अ कम्युनिटी इसको हमने नाम दिया है. तो दैट इज व्हाई इट इज ग्रीन. हम इसको रेड का नाम देते तो हम इसको रेड बुलाते. ठीक है. यही प्रॉपर्टीज होती, यही कलर होता, हम इस कलर को रेड कहते होते तो हम सारे रेड कहते, राइट. सो दैट इज कि क्रिटिकल थ्योरी या प्रैग्मेटिज्म का बिलीफ ये है कि सोशल रियलिटी जो है या रियलिटी कोई भी है, दैट इज सोशली कंस्ट्रक्टिव. यानी सोशल एनवायरनमेंट में जो लोग रहते हैं या जो एनवायरनमेंट ओवरऑल है वो डिसाइड करेंगे
talk or philosophy? सर आपकी वॉइस डिस्टॉर्ट हो रही है बहुत ज्यादा। सॉरी गाइस, आई गॉट कट। तो आप मुझे काइंडली बता सकते हैं कि वेयर वी वर? ऑन क्रिटिकल थ्योरी सर। अबाउट, You were यस, you were explaining the example of pen. ऑलराइट ऑलराइट, ओके ओके ओके। आई जस्ट कवर्ड के हम एग्जांपल दे चुका था मैं, वो कवर हो गई पेन वाली एग्जांपल। जी सर। ओके, नाउ एज आई डिस्कस्ड अर्लियर कि जो पैराडाइम होता है दैट इज द ब्लू ontology, epistemology, ontology। तो हम आते हैं कि ontology एक्चुअली क्या होता है। ontology इज बेसिकली कि आप, what is your belief about reality, what is your belief about nature of the reality, what do you believe कि reality क्या है, reality की nature क्या है, nature से सर आपकी आवाज कट हो रही है। all right। so अभी आवाज क्लियर आ रही है? आई सॉ कि मेरे इंटरनेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, सो दैट्स व्हाई आई गॉट टू चेंज माय नेटवर्क। अभी प्रॉपर आ रही है आवाज, आई थिंक। Yes sir. It's clear Alright, now. great, 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 great। Yes। So, anybody has any questions so far? Nobody has any questions? Hello? Yes sir, it's clear for me. Don't No, have sir. any No Okay। any question. सर आप थोड़ा पैराडाइम को थोड़ा रिपीट करेंगे? All right, paradigm को repeat करते हैं। यस सर, Paradigm थैंक is यू। basically, paradigm is basically your framework of doing research, या इसको हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड व्यू, हाउ डू यू सी थिंग्स, आप चीजों को देखते कैसे, आपका नजरिया क्या है, दैट इज योर पैराडाइम। क्लियर? पैराडाइम आपकी रिसर्च को गाइड करता है। गाइड किस तरीके से करता है कि पैराडाइम के अंदर देयर आर डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट होता है नेचर ऑफ रियलिटी, जिसको हम ऑन्टोलॉजी कहते हैं, जो हम अभी डिस्कस करने लगे हैं। ऑन्टोलॉजी में हम ये डिसाइड करते हैं कि नेचर ऑफ रियलिटी क्या है, रियलिटी किस नेचर की है। जैसे हम आपस में एक दूसरे को कहते हैं ना कि इसकी नेचर ऐसी है, उसकी नेचर वैसी है। ठीक है, तो सिमिलरली जो रियलिटी है उसकी भी एक नेचर होती है। नेचर से मुराद ये नहीं है, अब हमारी नेचर तो, हम ह्यूमंस हैं तो हमारी नेचर पे हम क्या डिस्कस करते हैं कि ये गुस्से वाला है, या ये शाय है, इसकी नेचर ऐसी है। ठीक है, या कोई कनिंग होता है तो उसको कहते हैं कि इसकी तो नेचर ही ऐसी है, काइंड ऑफ। या फिर आपको कोई ऐसे दोस्त मिले होंगे जिनको आप सांप कहते होंगे, तो सांप, सांप ऐसा होता है, राइट? तो सांप की तो नेचर है डसना, तो ये सांप है, इसने डसा, तो लाइक काइंड ऑफ इस तरीके की बातें, मतलब दिस इज हाउ वी डिस्कस ह्यूमन नेचर, राइट?
बट रिसर्च में जब हम आते हैं, या जो रियलिटी की जब हम डिस्कस करते हैं, तो रियलिटी की नेचर होती है कि रियलिटी के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, हम कैसे नॉलेज गेन कर सकते हैं रियलिटी के बारे में। तो उसकी नेचर होती है दो तरह की। ठीक है, एक नेचर होती है कि हम वेदर क्वांटिटेटिव डेटा यूज करें, जिसको हम न्यूमेरिकल डेटा कहते हैं, या फिर हम रियलिटी को वर्बली मालूम कर सकते हैं। राइट, तो ये दो चीजें होती हैं। अब पॉजिटिविस्ट जो पैराडाइम है, दैट बिलीव्स के रियलिटी को हम न्यूमेरिकल डेटा के साथ क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। उसमें जो भी रिजल्ट आएंगे वो एक ही वही रिजल्ट सबके लिए लागू होंगे, सबके लिए वही होंगे। ऑन द अदर हैंड इंटरप्रेटिविज्म कहता है कि हम रियलिटी को असेस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड्स और वर्बल रिस्पॉन्सेज के बेसिस, और हर किसी के वर्बल जो रियलिटी जो है वो हर किसी के लिए डिफरेंट होगी। क्लियर? दिस इज हाउ ऑन्टोलॉजी वर्क्स। नेचर ऑफ रियलिटी होती है दो, एक पॉजिटिविस्ट, एक इंटरप्रेटिविस्ट। या हम इसको कहते हैं, इन अदर वर्ड्स हम इनको कहते हैं कि या तो रियलिटी सब्जेक्टिव है या रियलिटी ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव रियलिटी मींस, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होता है, ठीक है, एमसीक्यू पेपर होते हैं, तो हम इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर। यानी उसमें जो क्वेश्चन का आंसर सही होगा चार में से, वही सबके लिए सही, वो मेरे लिए भी सही वही है, आपके लिए भी, नो मैटर व्हाट यू चूज, वो सही नहीं होगा। जो क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर बनाने वाले ने सही ऑप्शन लिखा है, वही सही ऑप्शन होगा, वो चाहे फिर आंसर गलत ही क्यों ना हो। ठीक है, तो सबके लिए क्या होगा, वही सही होगा जो सेट किया गया है प्री सेट में। ठीक। दूसरा होता है सब्जेक्टिव, जैसे आपका सब्जेक्टिव का पेपर होता है, ठीक है, जैसे आप शॉर्ट क्वेश्चंस या लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं आपके, तो दैट इज योर सब्जेक्टिव पेपर, आप उसको सब्जेक्टिव पेपर कहते हैं। तो सब्जेक्टिव पेपर में, अब ऑब्जेक्टिव में क्या होगा कि हर किसी ने वही आंसर देना है जो उसका आंसर है, उसी तरीके से देना है जिस तरीके से जो एग्जामिनर है उसने ऑप्शन में दिया हुआ है। राइट, बट इन सब्जेक्टिव पेपर एक ही क्वेश्चन के 10 स्टूडेंट्स जब रेस्पॉन्स करते हैं, तो वो 10 डिफरेंट तरीकों से करते हैं। क्यों? क्योंकि हर किसी, हो सकता है कि 10 के 10 बच्चों ने डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ा हो उसके लिए, फिर उनका लिखने का तरीका भी डिफरेंट होता है, तो दैट इज व्हाई वी कॉल इट सब्जेक्टिव, कि आप अपनी मर्जी से जो कुछ लिखना चाहते हैं लिखें। कुछ तो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने उसमें आंसर शीट के अंदर सॉन्ग्स लिख के आते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो क्वेश्चन पेपर को लिख के आते हैं। राइट, तो दैट इज सब्जेक्टिव पार्ट, आप जो भी कुछ लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। सो सिमिलरली रियलिटी भी या सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव जब तब होती है जब हम एक रियलिटी सभी के लिए सेम हो, ठीक है, और सब्जेक्टिव रियलिटी वो होती है कि एक रियलिटी हर किसी के लिए डिफरेंट हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी डायरेक्ट वाली, तो डायरेक्ट जो 10 मीटर पे खड़ा है वो एक्सपीरियंस कर रहा है डिफरेंट तरीके से, जो 100 मीटर पे खड़ा है वो एक्सपीरियंस कर रहा है डिफरेंट तरीके से। समझ आ रही है मेरी बात? सो दिस इज हाउ इट इज, देयर आर डिफरेंसेस इन नेचर ऑफ रियलिटी। क्लियर? तो पॉजिटिविस्ट का जो बिलीव है अबाउट ऑन्टोलॉजी ऑफ रिसर्च, ऑन्टोलॉजी ऑफ रियलिटी, वो ये है कि रियलिटी इज सिंगल एंड वन फॉर ऑल। ठीक है, ऑन द अदर हैंड interpretivists believe that multiple realities exist based on individual experiences। आपका जो एक्सपीरियंस है उसकी बेसिस पे रियलिटी डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, फिर आती है जी बात क्रिटिकल थियरी या प्रैग्मेटिज्म की। उसका बिलीफ ये है कि रियलिटी इज शेप्ड बाय सोशल इन्वायरमेंट। जी हमने पहले भी डिस्कस किया कि सोशल इन्वायरमेंट में, या जो हमारी चीजें सराउंडिंग में होंगी, इर्द गिर्द जो हमारी चीजें हैं, वो बनाएंगी एक किसी भी रियलिटी को, वो बताएंगी कि रियलिटी क्या है। रियलिटी
इट सेल्फ एग्जिस्ट नहीं करती, रादर ये शेप की जाती है या बनाई जाती है बाय सोशल इन्वायरमेंट। क्लियर? एनीबडी जिसको ऑन्टोलॉजी समझ नहीं आई तो हम उसको एक्सप्लेन करते हैं दोबारा। वील गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्लियर है सबको? हमको क्लियर है, but I would like some responses from here. Eh, Aruj, Aruj Fatma, everything clear, Baba? Or do you need any further explanation on this? All right, I think I take this as everything is clear so far. तो हम आ जाते हैं epistemology के ऊपर। Epistemology is the theory of knowledge, यानी how we know what we know। हम जो भी चीज हमें पता है, जो भी इंफॉर्मेशन हमने हासिल की है अब तक, वो किस तरीके से हमने हासिल की है, दैट इज हमारी epistemology। यानी epistemology tries to answer how of our research, कि हम किस तरीके से उसको कवर करेंगे। सो इसकी एग्जांपल है कि नॉलेज किस तरीके से आएगी हमारे पास। नॉलेज किस तरीके से हमारे पास आएगी? क्या नॉलेज हमारे पास न्यूमेरिकल आएगी? नॉलेज हमारे पास वर्बल आएगी? अगर वर्बल आएगी तो किस तरीके से आएगी? क्या प्रोसीजर होगा? और किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन या नॉलेज को हम कैसे अपने पास मेमोरी में सेव करेंगे? ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन। अब जो ऑब्जेक्टिव जो पॉजिटिविस्ट हैं, या जिसको हम ऑब्जेक्टिविस्ट भी कहेंगे अब, क्योंकि पॉजिटिविस्ट को हम इनको बोलेंगे ऑब्जेक्टिविस्ट। ऑब्जेक्टिविस्ट हैं कि जो नॉलेज है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है किसी के कॉन्शियस से, या किसी की ब्रेन से, या किसी की मेंटल अप्रोच से। मतलब ये है कि जो भी किसी को अगर सही इंफॉर्मेशन, मतलब किसी भी जैसे फॉर एग्जांपल कोई लॉ ग्रेविटी का, ठीक है, तो ग्रेविटी का लॉ है, सबको पता है कि ग्रेविटी इज 7.8 एंड ब्ला 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 ब्ला, राइट? सो अब ये नॉलेज मैंने कैसे हासिल किया, या ये नॉलेज सही है या नहीं है, इसका ऑब्जेक्टिविस्ट ने अगर डिक्लेयर कर दिया कि ये डेटा, ये नॉलेज है और यही नॉलेज है, बस ये सही नॉलेज ये है, तो ऑब्जेक्टिविस्ट कहेंगे कि इसके ऊपर रीथिंक तो किया जा सकता है, मगर इस अगर ये इसका जवाब फिर भी यही आता है तो ये यही होगा। ठीक है, यानी ग्रेविटी अगर 7.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो वो है। ठीक है, उसको हम दोबारा स्टडी करेंगे तब भी वही आएगा। ठीक है, और उसमें हम इसको रीजन के थ्रू दोबारा इसको डिस्कस नहीं कर सकते, या इसको ये नहीं कह सकते कि ये क्यों है, क्यों, बस है तो है। ठीक है, क्लियर? सब्जेक्टिविस्ट कहते हैं कि नॉलेज इज ऑलवेज फिल्टर्ड थ्रू ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। ठीक है, किसी भी चीज के बारे में जब हम रिसर्च करेंगे तो हम उस चीज के बारे में जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन या नॉलेज आएगी, वो हम मैच करते हैं, हमारे दिमाग में प्रोसेस होते वक्त ये होता है कि हम उसको क्रॉस मैच करते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ। ठीक है, अगर वो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ मैच कर रही होती है न्यू इंफॉर्मेशन, तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। अगर वो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ कन्फ्लिक्ट कर रही होती है तो हम उसको रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, समझ आ रही है? सो द पॉइंट इज, नॉलेज सही या गलत तब होगी जब, लाइक
नॉलेज सही या गलत इस बेसिस पे हम डिक्लेयर करेंगे जो हमारे ऑलरेडी एक्सपीरियंसेस होंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं पाकिस्तान में ड्राइव करता हूँ और मुझे पता है कि राइट लाइन पे जाना है। ठीक है, तो अगर मैं यही ड्राइविंग स्किल लेके, अब मेरे लिए रियलिटी क्या है कि राइट साइड पे जाना है। ठीक है, जब भी मैंने ट्रेवल करना है तो राइट लेन में ट्रेवल करना है। अगर मैं चला जाऊं दुबई, वहां पे ट्रैफिक रूल्स डिफरेंट है, और वहां पे लेफ्ट उस पे जाना होता है लेन में। ठीक है, अगर टू वे है तो लेफ्ट लेन में जाना होता है, और क्या कहते हैं अपना, अगर वन वे है तो उसकी फिर हाई स्पीड वाली जो लेन होती है वो वन वे होगी, सॉरी लेफ्ट वाली होगी। सो द पॉइंट इज, वहां पे मेरे जो एक्सपीरियंसेस होंगे वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, मैं लीगल समझूंगा राइट पे जाने को, जबकि मुझे लेफ्ट पे जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एनवायरनमेंट डिफरेंट है। पर मैं राइट पे क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे जा रहा हूँ। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं हमेशा राइट पे चलता हूँ। क्लियर? तो दिस इज हाउ वी इंटरप्रेटिविस्ट बिलीव अबाउट, और हम हमेशा वो चीज को सही कहेंगे जो हमारे पास अवेलेबल नॉलेज होगी, उससे मैच करेगी, तो हम उस नॉलेज को एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज हम उस नॉलेज को रिजेक्ट कर देंगे। ऑन द अदर हैंड, जो प्रेगमेटिक एपिस्टेमोलॉजी है, या जिसको हम क्रिटिकल थ्योरी की एपिस्टेमोलॉजी है, बिलीव करते हैं कि नॉलेज कम्स फ्रॉम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अगर हमने नॉलेज गेन करनी है तो हम क्या करेंगे, उस चीज को प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ठीक है, मैं दुबई में गाड़ी खुद चला के देखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि गाड़ी लेफ्ट लाइन पे चलानी है या राइट लाइन पे चलानी है। ठीक है, तो दिस इज द बिलीफ ऑफ pragmatism. Clear? Or anybody has any question so far? Yes, sir. I am a bit confused between subjectivist epistemology and pragmatic epistemology, as they both are referring to experience which are felt by humans. So, how they are different? Okay, pragmatic and interpretivist, right? Last वाली दो। Yes, yes. जी ओके, जी. सब्जेक्टिव जो है उसके अंदर क्या हो रहा है कि मेरे प्रीवियस जो एक्सपीरियंसेस हैं या प्रीवियस नॉलेज है, उसके उससे जो मैच करेगी नॉलेज, वो मैं नॉलेज को वैलिडेट करूंगा। राइट? ये क्या है? सब्जेक्टिव। समझे? अब ऑब्जेक्ट जो प्रेगमेटिक है वो कहती है कि किसी भी नॉलेज को गेन करना है, न्यू नॉलेज के लिए न्यू एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा। समझ आई? कि चीजें, जैसे अभी आप रिसर्च Okay, सीख रहे हो, sir. जैसे आप रिसर्च सीख रहे हो, तो कुछ लोग बोलते होंगे कि रिसर्च के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो है। ठीक है, आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ऑलरेडी रिसर्च के बारे में पढ़ा होगा, तो उनको लग रहा होगा कुछ चीजें मैं उनसे मैच में कर रहा हूँ, कुछ चीजें मैं कर रहा हूँ जो उन्होंने कभी नहीं सुनी। तो वो उन चीजों के साथ तो रिलेट कर रहे हैं कि जो उन्होंने ऑलरेडी पढ़ी है, तो दैट इज सब्जेक्टिव। बट जो नहीं पढ़ी वो उनसे रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे, और उनको लग रहा होगा कि ये शायद हमने जो पहले पढ़ा वो गलत है, या जो सर पढ़ा रहे हैं वो गलत है। तो वो अपनी उस जो न्यू इन्फॉर्मेशन है ना, उसके बेसिस पे या तो पहले वाली को क्वेश्चन कर रहे हैं, या दूसरे वाली को क्वेश्चन कर रहे हैं, बट वो फिल्टर कर रहे हैं अपनी नॉलेज। जो भी इंफॉर्मेशन उनको मिल रही है वो उस इंफॉर्मेशन को फिल्टर कर रहे हैं कि हमने जो अब तक पढ़ा वो सही पढ़ा या गलत पढ़ा, या सर जो पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं या गलत पढ़ा रहे हैं। समझ आ रही? तो फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो बेस्ड होता है ऑलरेडी प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन के ऊपर, या ऑलरेडी अवेलेबल इंफॉर्मेशन के ऊपर, एंड दैट इज द पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिविज्म। ठीक है, प्रेगमेटिज्म क्या है कि प्रेगमेटिज्म का पॉइंट ये है कि रियलिटी के बारे में अगर आपने इंफॉर्मेशन लेनी है या नॉलेज लेनी है, तो उस रियलिटी में खुद जाना पड़ेगा, वो चीज खुद करके देखनी पड़ेगी। अब
आती है बात कि मैं जब आप प्रैक्टिकल करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो मैंने बताया वो सही है या जो आपके टीचर ने, फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसी चीज है जो मैच नहीं कर रही फॉर एग्जांपल, तो वो फिर आपको पता चलेगा कि जो मैंने बताया अगर वो वाली बात सही है या जो आपके अपने टीचर ने अपनी यूनिवर्सिटी में बताया वो सही है। ठीक है। तो दैट इज द बिलीफ ऑफ pragmatic अप्रोच और pragmatic epistemology. I hope this is clear now. Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much. No worries, Baba. Anybody else who has any questions can ask. यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं जी मैथोडोलॉजी के ऊपर। वैसे मैथोडोलॉजी के ऊपर आने से पहले आई वुड लाइक टू गेट सम रेस्पॉन्सेज ऑन, आपको क्या लगता है कि मैथोडोलॉजी क्या है? What May I, sir? do you know about? Yes, please introduce yourself. So, Yes, yes, sir. For me, methodology is a complete framework your which tell name? you how you are going to conduct your research. All right. All right. Yes, right. It says method we used to get specific knowledge. Yes, exactly. यही है. Anybody else? Amna, you had a question about critical theory ontology or what? I just read your message. Hmm, 7 new messages. Please explain. Okay, ontology. Ontology. Yes. So, guys, let's recap the ontology of critical uh, theory. Critical theory की ontology क्या है कि it believes reality is shaped by power structures और social factors. हम पाकिस्तान के बारे में किस तरीके से सोचते हैं, हम पाकिस्तान के बारे में किस तरीके से सोचते हैं, ये हमें आर्मी वाले में मजाक में कह रहा हूँ, वैसे हमारे स्टेट बताती है, जो हम स्टेट के ओन्ड बुक्स पढ़ते हैं उससे हमें पता चलता है, उससे हम नजरिया बनाते हैं पाकिस्तान के बारे में, राइट? सो उसका मतलब ये है कि जाहिर है जो करिकुलम बना रहे हैं, जो बुक्स पब्लिश हो रही हैं उनको मॉनिटर कर रहे हैं, उनकी मर्जी से हम पाकिस्तान के बारे में कुछ भी परसेप्शन बना रहे हैं या पाकिस्तान के बारे में आइडियोलॉजी या अपना एक जो है ओपिनियन बना रहे हैं, राइट? इसका मतलब ये है कि जो हमारा ओपिनियन बन रहा है पाकिस्तान के बारे में वो किसी और की वजह से बन रहा है, ठीक है? या अभी जो हमारा पाकिस्तान के बारे में करंट ओपिनियन जो जनरल यूथ का है कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, एंड यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं है एंड ऑल दैट, तो ये हमारा परसेप्शन क्यों बना? क्योंकि ये परसेप्शन शेप हुआ हमारे सोशल मीडिया के थ्रू कि यहाँ पे इन्फ्लेशन है, सोशल मीडिया पे हम सारा दिन सुनते रहते हैं कि इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन है, महंगाई हो गई, महंगाई हो गई, महंगाई हो गई। फिर हम सुनते हैं कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। फिर हम कहते हैं कि यहाँ पे मुल्क में हालात इस तरह रहे नहीं कि हम क्या कहें कि यहाँ पे बंदा सरवाइव कर सके and all that. So these are the things that you shape your perception about something. ठीक, जैसे आ, आ, आपका ओपिनियन है फॉर एग्जांपल, तो वो किस तरीके से बना है? क्योंकि आपको इमरान खान की वो वाली इमेज पोर्ट्रे करके बताई गई, ठीक है?
नवाज शरीफ के बारे में जो आपका जो ओपिनियन है वो उस इसलिए वो है क्योंकि उसको उस तरीके से पोर्ट्रे किया गया मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो आपको वो एक्सपोजर है उस पर्टिकुलर नॉलेज तक, और उसके अकॉर्डिंग आपको आपका वो पर्टिकुलर परसेप्शन बन रहा है किसी भी चीज के बारे में, किसी भी इंसान के बारे में। सो मतलब ये कि जो भी चीजें सराउंडिंग में हैं आपकी, या जो भी लोग आपको दिखाते हैं, वही चीज, वही आपका परसेप्शन बनता है। ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। That is very subtle example of pragmatic ontology, कि जिस इलाके में या जिस एनवायरनमेंट में हम होंगे उस तरीके की हमारे लिए रियलिटी बन जाएगी। क्लियर आमना? आई होप आई हैव गिवन इनफ एग्जांपल्स to clarify this. All right, now we coming to methodology. Methodology is the systematic plan for conducting research, the principles, procedures, and practices. Methodology जो है वो प्रॉपर, अब अभी तक जो हम पढ़ रहे थे प्रैक्टिकल से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे कि रिसर्च में प्रैक्टिकली क्या क्या चीजें होंगी, क्या बिलीफ होगा तो क्या प्रैक्टिस होगी, क्या बिलीफ होगा तो क्या प्रैक्टिस होगी। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉल इट, दिस इज वेरी गुड एग्जांपल, नेक्सस ऑफ बिलीफ। हमारा बिलीफ क्या है, उसके बेसिस पे हमारी मतलब ऑन्टोलॉजी हमारी क्या है, हम नेचर को किस तरीके से देखते हैं, वेदर नेचर इज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। उसके बेसिस पे हम एपिस्टेमोलॉजी बनाएंगे कि डेटा हमें न्यूमेरिकल चाहिए या वर्बल चाहिए। उसके बेसिस पे हम रिसर्च मेथडोलॉजी बनाएंगे, दैट इज स्ट्रक्चर्ड प्लान, कि कौन से मेथड से डेटा कलेक्ट करें, कौन से मेथड से हम डेटा को एनालाइज करें, कौन से मेथड से के थ्रू हम डेटा को प्रेजेंट करें। ठीक है, दैट इज द पार्ट ऑफ मेथडोलॉजी ऑफ। सो पहला है हमारा क्वेश्चन कि डेटा किस तरीके का होगा, न्यूमेरिकल या सॉरी सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, नेचर क्या है, सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव। फिर उस सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव नेचर के अकॉर्डिंग उस नेचर को समझने के लिए क्या चीज चाहिए, किस किस तरीके से कौन सा डेटा चाहिए। उसके बाद फिर हम कहेंगे कि उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए कौन सा मेथड हमें कौन सी मेथडोलॉजी यूज करनी चाहिए। जस्ट गिव मी अ मोमेंट एंड आई बी बैक। मैं जरा पानी पी लूं। अगर आप में भी किसी को पीना है तो यू कैन टेक 5 minutes ब्रेक। वी बी बैक एट 4:40।
Hi. Yes, if there is no VC. Yes, Aisha, I was out for drinking water. So we took a break for 5 minutes and we are starting now. Anybody has any questions so far? तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है? जब तक हमारे पास 1 मिनट है अभी, it's 39 तो कोई भी एक क्वेश्चन अगर किसी को पूछना है तो यू कैन आस्क. वैसे आई एम सीइंग कि यू पीपल आर comparatively less interactive than our first slot, क्योंकि जो 11 बजे वाली slot थी उसके अंदर there were a lot of people participating in the class and they were asking a lot of questions and I was like happy to hear their questions and answer them. So if you have any kinds of question, no matter बाबा, see, we are here to learn, ठीक है? आप यहाँ सारे इसलिए रजिस्टर किए हैं कि आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है? तो आप ऐसा समझें कि किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं है तभी इसने रजिस्टर किया है ना उसमें, कि उसको नई इन्फॉर्मेशन चाहिए. तो अगर आप कुछ भी क्वेश्चन करते हो तो आई डोंट थिंक कि किसी को उससे प्रॉब्लम होनी चाहिए या कोई भी आपके ऊपर हंसेगा. रादर सबको सभी को इन्फॉर्मेशन चाहिए है, और जो जिसको जितनी जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है वो वहां से लेता है ऑब्वियसली. बट अगेन, I would be really, really happy and I would appreciate if you people participate and ask questions, कि जो भी आपको कंफ्यूजन है या जो चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप उसको क्वेश्चन कर सकते हैं. नो वरीज, आपको जितनी बार पूछना है मुझसे पूछ सकते हैं. एंड आई एम नॉट सेइंग इट फॉर द सेक ऑफ सेइंग, रादर आई विल इम्प्लीमेंट दैट. ठीक है, मतलब होता है ना कि कुछ टीचर्स कहते हैं कि आप जो मर्जी पूछ, आप जितनी बार पूछोगे मैं बताऊंगा. आप 2 बार पूछने पे आपको 2 बार बताते हैं, तीसरी बार पूछते हो तो आपको इतनी बार बताया है. तो मैं ऐसे नहीं करूँगा. आपने देखा है कि जिसको भी जो भी क्वेश्चन होता है मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ. नाउ वी हैव दिस असरा रहमान अब्बासी. शी इज आस्किंग सर मेथोडोलॉजी एक्सप्लेन करें दोबारा. नो वरीज, हम दोबारा मेथोडोलॉजी एक्सप्लेन करते हैं. ओके. रिसर्च मेथोडोलॉजी. रिसर्च मेथोडोलॉजी बेटा एक सिस्टमेटिक प्लान है आपका, ठीक है? जैसे पैराडाइम आपका एक एब्स्ट्रैक्ट प्लान है, ठीक है, कि आप चीजों को कैसे लेके जाओगे. पैराडाइम के अंदर एक कंपोनेंट है मेथोडोलॉजी. ये स्ट्रक्चर्ड और जिसको हम कह रहे हैं कि कंक्रीट फ्रेमवर्क है आपका, प्लान है आपका, कंक्रीट प्लान, सिस्टमेटिक प्लान. एक एक चीज डिफाइंड होगी मेथोडोलॉजी के अंदर, कि आपने अप्रोच कौन सी यूज करनी है, आपने मेथड कौन सा यूज करना है, आपने प्रोसीजर कौन सा यूज करना है, या आपने प्रैक्टिसेस क्या क्या करनी है, कौन कौन सी मशीन्स इन्वॉल्व होंगी आपकी किसी भी रिसर्च के अंदर. जैसे मेडिकल रिसर्च के अंदर डिफरेंट मशीन्स यूज होती हैं, ठीक है? किसी ने केमिस्ट्री के अंदर कोई रिसर्च करनी है तो उसके उसके लिए जाहिर है डिफरेंट एलिमेंट्स की जरूरत होती है. उन डिफरेंट एलिमेंट्स को एक डिफरेंट प्रोसीजर्स के थ्रू गुजार करके उनके आइसोटॉप्स बनाना, या फिर उनके डिफरेंट क्या कहते हैं वर्जन्स या वेरिएंट्स बनाना, उनका एक प्रोसीजर्स होते हैं, उनकी कुछ मशीन्स होती हैं. तो ये सारी चीजें कब कहाँ कौन सी चीज इस्तेमाल होगी उसको हम मेथोडोलॉजी कहते हैं, ठीक है? इस सब के बारे में जो प्लान करते हैं हम उस प्लान को मेथोडोलॉजी कहते हैं. क्लियर बाबा? असरा, was I able to answer your question? Yeah, I was able to explain it in the terms that you understand. अगर नहीं आ रहा समझ यस तो दोबारा सर, पूछो. मुझे थोड़ा सा क्लियर हुआ है, अभी भी इतना नहीं हुआ मतलब. ओके. जी सर. इसमें इसमें इसके अंदर मेथोडोलॉजी के अंदर अब क्वेश्चंस पे आते हैं कि कोई भी चीज, हाउ शुड वी गो अबाउट एक्वायरिंग नॉलेज. हमें नॉलेज किस तरीके से गेन करनी चाहिए. जैसे हमने पहले डिफाइन किया कि हमें हमारी रियलिटी क्या है. ओंटोलॉजी में हमने डिसाइड किया हमारी रियलिटी फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव है. उस ऑब्जेक्टिविटी के बेसिस पे हमें डेटा कौन सा चाहिए. ऑब्जेक्टिविटी के लिए न्यूमेरिकल डेटा चाहिए. न्यूमेरिकल डेटा हो गया.
उसके बाद हम मेथडोलॉजी यूज करेंगे। मेथडोलॉजी इज अ ग्रेटर प्लान, स्टेप बाय स्टेप प्लान, कि हम उस न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट कैसे करें, कौन सा मेथड यूज करें कलेक्शन के लिए, सैम्पलिंग के लिए कौन सा मेथड यूज करें, ठीक है। फिर उस कलेक्टेड डेटा को एनालाइज कौन कौन से मेथड्स और टेक्निक्स के थ्रू करें, ठीक है। और फिर उस एनालाइज डेटा को हम किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चंस को हम इसके अंदर क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं या डिस्कस करते हैं प्लान के अंदर। हम प्लान बताते हैं कि हम रिसर्च को करेंगे, एक्चुअल रिसर्च किस तरीके से दिखेगी या होगी, कंप्लीट कैसे होगी, एक एक प्रोसेस, एक एक स्टेप पे क्या होगा, पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप क्या होगा। तो ये सारी चीजें हम मेथोडोलॉजी के अंदर क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर बाबा? Yes, sir. All clear. Thank you so much. नो वरीज बाबा। ऑलराइट, वी वर डिस्कसिंग नेक्सस ऑफ बिलीफ। बिलीफ के बारे में जो नेक्सस है, नेक्सस इज एक्चुअली द कनेक्शन, ठीक है। क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं और उनका आपस में क्या कनेक्शन है, इसको हम कहते हैं कि नेक्सस ऑफ पैराडाइम एज वेल, ठीक है। पैराडाइम के तीन कंपोनेंट्स हैं। ऑन्टोलॉजी, कि नेचर क्या है, यानी रियलिटी ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है। फिर उस वो सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे हम एपिस्टेमोलॉजी डिसाइड करेंगे कि एपिस्टेमोलॉजी क्या होगी। एपिस्टेमोलॉजी हमारी, वेदर इट विल बी लाइक डेटा हमें कौन सा चाहिए, ऑब्जेक्टिव रियलिटी है तो डेटा न्यूमेरिकल चाहिए, सब्जेक्टिव रियलिटी है तो डेटा हमें वर्बल चाहिए। अगर रियलिटी को हम बिलीव करते हैं कि मिक्स्ड है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी है सब्जेक्टिव भी है, तो हमें फिर दोनों डेटा चाहिए, ठीक है। तो फिर उसके बाद आती है मेथडोलॉजी, और उसके अंदर हम डिसाइड करते हैं कि अगर न्यूमेरिकल डेटा चाहिए तो उसके लिए क्या प्रोसीजर्स होंगे, क्या क्या स्टेप बाय स्टेप हम स्टेप्स फॉलो करेंगे टू अचीव आवर गोल इन रिसर्च, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। कौन कौन से अगर डेटा रियलिटी हमारी ऑब्जेक्टिव है, सॉरी सब्जेक्टिव है, और डेटा हमें वर्बल चाहिए, तो उस वर्बल डेटा को कलेक्ट करने के लिए और एनालाइज करने के लिए क्या कौन कौन से स्टेप्स हम फॉलो करेंगे, ठीक है, टू गेट आवर ऑब्जेक्टिव्स। तो अगेन उसका जो प्लान होगा डिटेल्ड हम मेथडोलॉजी के अंदर बयान करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जो नीचे एग्जांपल दी गई है, इफ यू बिलीव फॉर एग्जांपल रियलिटी इज ऑब्जेक्टिव, so you might believe knowledge can be measured objectively, yani with the help of numerical data, and then that will lead you to use quantitative method, yani quantitative approach। क्लियर? जिससे मैंने आपको बताया, फिर क्वांटिटेटिव अप्रोच के अंदर वी हैव डिफरेंट अप्रोचेस, और फिर अगेन उसके अंदर वी डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं, हम डिपेंडिंग ऑन आवर सिचुएशन एंड जो भी हमारे रिसर्च की रिक्वायरमेंट्स होती है उसके अकॉर्डिंग हम वो पर्टिकुलर डिजाइन चूज करते हैं। क्लियर? फिर आती है जी, हमारे पास अब आते हैं इनको, जो पैराडाइम्स थे हमारे, उनको थोड़ा सा तो हमने ऊपर डिस्कस किया था पैराडाइम के टाइम पे, बट दिस इज द डिटेल। और इसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिविज्म में क्या है। पॉजिटिविज्म इज बेसिकली emphasizes on the importance of objective and unbiased approach of studying the world। किसी भी चीज के बारे में जब हम रिसर्च करेंगे तो वो ऑब्जेक्टिव होगी, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, कि उसकी ऑन्टोलॉजी ऑब्जेक्टिव होगी। फिर सोशल वर्ल्ड इस इन अच्छा, ये क्योंकि पर्टिकुलरली वर्कशॉप बनाया था मैंने इनिशियली सोशल सोशल साइंसेस के लिए, बट सिंस वी हैव पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम अदर डिसिप्लिन एज वेल, जैसे नेचुरल साइंसेस है, तो नेचुरल साइंसेस में मोस्टली पॉजिटिविस्ट बिलीव जो पैराडाइम है वो यूज होता है, क्योंकि उसके अंदर नेचुरल लॉज के बारे में हम बात करते हैं। हम नेचुरल लॉज को क्या करते हैं कि नेचुरल इसका जो बिलीफ है कि रियलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, वी जस्ट नो इट, ठीक है, एंड वी नो इट विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है। कुछ कैलकुलेशंस करके हमें उसकी रियलिटी के बारे में पता चलता है।
और क्योंकि ये सोशल साइंसेज के लिए वर्कशॉप था, अगेन आई एम सेइंग कि सोशल साइंसेज में भी इसको अडॉप्ट किया गया शुरू में, ताकि इनको लगा, पॉजिटिविस्ट को लगा कि जो सोशल वर्ल्ड है या सोशल रिसर्च है, ह्यूमंस के बारे में जो, सोसाइटी के बारे में जो रिसर्च है, उसको भी उसी तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं जिस तरह से हम नेचुरल साइंसेस को स्टडी करते हैं। उसके बाद इनका ये बिलीव है कि क्वांटिटेटिव मेथड जो है वो हम यूज कर सकते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द रिसर्चर। यानी रिसर्चर का इसके अंदर कोई भी रोल नहीं है। रिसर्चर जस्ट ऑब्जर्व करता है, या रिसर्चर जस्ट उसको क्या कहते हैं, उन न्यूमेरिकल डेटा के बेसिस पे अपनी इंटरप्रिटेशंस बताता है कि मैंने जो रिसर्च की उसमें ये डेटा यूज किया, ये प्रोसीजर्स थे, और उसके बेसिस पे मुझे ये रिजल्ट्स मिले हैं। ठीक है। इसमें मैं अपनी कोई भी बात नहीं कर रहा। ठीक है। ओके, सोशल साइंस और नेचुरल साइंस में क्या फर्क है, इंजीनियरिंग किस साइंस में आती है? फरमान, इंजीनियरिंग कम्स इन नेचुरल साइंस बिकॉज इंजीनियरिंग इज मोर अबाउट फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो नेचुरल साइंस। और नेचुरल साइंस में एज आई सेड पॉजिटिविज्म जो पैराडाइम है वो यूज होता है। क्लियर? ओके। जो पॉजिटिविस्ट का जो बिलीव है कि रियलिटी ऑब्जेक्टिव होती है, यानी ऑब्जेक्टिविटी होती है इसके अंदर, और एम्पेरिसिज्म होता है, यानी एम्पेरिकल डेटा चाहिए हमें, न्यूमेरिकल डेटा चाहिए। वेरिफिकेशन होती है इसके अंदर, यानी कोई भी साइंटिस्ट एक एलिमेंट के ऊपर, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में रिसर्च कर रहा है, एक सर्टेन उसका सिस्टम बना के, तो वही रिजल्ट्स आएंगे। यानी जैसे फॉर एग्जांपल जैसे नमक का फार्मूला है, क्या है नमक का फार्मूला? NaCl, शायद ये ना, Yes, sir. एन एन Yes. NaCl हो, यही यही फार्मूला है NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड कोई भी साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड जब भी नमक बनाएगा तो NaCl बनाएगा, राइट? उसको सोडियम और क्लोरीन चाहिए। ठीक है। और उनको एक सर्टेन बॉन्डिंग के थ्रू बनाएगा, तो वो बन जाएगा। क्लियर? तो वेरिफिकेशन ये होगी कि NaCl जब भी कोई भी बनाएगा NaCl को मिला करके, उस सर्टेन प्रोसीजर्स फॉलो करके, तो वो NaCl बनेगा, यानी उसको वेरीफाई किया जा सकता है। फिर है कॉजलिटी। कॉजलिटी ये होती है कि एक चीज होगी तो दूसरी उसके हिसाब से लाजमी है कि होगी ही होगी। फिर इसके अंदर क्वांटिटेटिव मेथड यूज होता है। फिर प्रिडिक्टिव कैपेबिलिटी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक सोडियम और एक क्लोराइड से को मिला के अगर हमारे पास NaCl बनता है, तो हमारे पास अगर 10 सोडियम और 10 क्लोरीन होंगे, तो हमारे पास NaCl के 10 कंपाउंड बनेंगे। ठीक है। तो प्रेडिक्टेबिलिटी ये है कि ऐसा नहीं होगा कि क्लोरीन क्लोरीन से मिल जाएगा और सोडियम सोडियम से मिल बॉन्ड बना लेगा, नहीं। उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में उन पर्टिकुलर प्रोसीजर्स को फॉलो करके एक एलिमेंट हो दोनों का, सॉरी, एक आइसोटोप हो दोनों का, या मल्टीपल आइसोटोप्स हो, बनेगा उनमें से NaCl ही। तो दैट इज प्रिडिक्टिव कैपेबिलिटी। फिर अ, दूसरा है नेचुरल वैल्यू न्यूट्रलिटी, और लॉ लाइक जनरलाइजेबिलिटी। लॉ लाइक जनरलाइजेबिलिटी ये है कि नेचुरल लॉज होते हैं। ठीक है। इसके अंदर जैसे फिजिकल लॉ की बात की मैंने, ग्रेविटी के लॉ की बात की, या और भी जितने भी क्या कहते हैं अपना लॉज होते हैं नेचुरल, तो उन सब लॉज की तरह नेचुरल साइंसेस के लॉज की तरह हम सोशल साइंसेस में भी लॉज बना सकते हैं। दैट इज द बिलीफ ऑफ पॉजिटिविज्म। क्लियर? अब आते हैं इंटरप्रेटिविज्म के ऊपर। अगर किसी को पॉजिटिविज्म में कोई क्वेश्चन है तो दे कैन आस्क। ओके। सो इंटरप्रेटिविज्म ये क्या कहता है कि अंडरस्टैंडिंग
the subjective meaning individuals attached to their experiences and actions. ठीक है, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर। तो इसमें क्या होता है कि आपकी जितनी जो अंडरस्टैंडिंग है हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी न्यू इंफॉर्मेशन हमें मिलती है हम उसको फिल्टर करते हैं थ्रू आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग और अवेलेबल नॉलेज। हमारे पास पहले जो भी इंफॉर्मेशन है उससे रिलेट करते हैं या उससे फिल्टर करते हैं, और जो उस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ अलाइन हो रही होती है नॉलेज, हम उसको एड ऑन कर लेते हैं, और जो अलाइन नहीं कर रही होती हम उसको फिल्टर आउट करके बाहर कर देते हैं, या उसको हम अंडरस्टैंड या एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक हो गया। फिर है जी, इट emphasizes on the context, meaning and the use of qualitative method। इसमें क्या होगा कि emphasize करते हैं context। context is again the already prior knowledge जो हमारी है, हमारे पास ऑलरेडी जो हमारे पहले से किए गए एक्सपीरियंसेस हैं वो एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट होता है, या जिस इन्वायरमेंट में वो बात हो रही होती है वो उसका कॉन्टेक्स्ट होता है। ठीक है। तो और इसके अंदर हम यूज करते हैं क्वालिटेटिव मेथड। ठीक हो गया। फिर है जी, इसके अंदर सोशल फिनोमेना कैन नॉट बी फुली अंडरस्टूड विदाउट कंसीडरिंग द कॉन्टेक्स्ट इन विच दे अकर। इसके अंदर जो मेजर पॉइंट है वो ये है कि सोशल फिनोमेना यानी कोई भी सोशल हैपनिंग, कोई भी सोशल चीज आ, कभी भी उसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कंप्लीटली जब तक हम उसके कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड ना करें, कि वो किस सिचुएशन में हो रही है, क्या वहाँ का एनवायरनमेंट था, क्या सरकमस्टांसेस थे। तो उनको अंडरस्टैंड किए बगैर हम सब सोशल साइंसेस में या किसी भी सोशल चीज के बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, या उसको हम उसके कंप्लीटली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ठीक है। इसके अंदर क्या है, सब्जेक्टिव रियलिटी है। जैसे मैंने बताया कि रियलिटी हर किसी के लिए अलग अलग होगी। क्वालिटेटिव मेथड होगा, यानी वर्बल डेटा हमें चाहिए होगा। इसके अंदर होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होती है, होलिस्टिक यानी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होती है। फिर उसके अलावा इमिक पर्सपेक्टिव होते हैं इसके अंदर, यानी कि हम अपने अपने न्यू पर्सपेक्टिव्स को हम उसके अंदर वो करते हैं, क्या कहते हैं, लेके आते हैं। इसके अंदर इंडक्टिव रीजनिंग होती है, यानी कि काइंड ऑफ हम न्यू इंफॉर्मेशन जब भी प्रोड्यूस करनी होती है तो हम फिर उसको वैलिडेट या बार बार करने के बाद हम उसको करते हैं। ठीक हो गया। फिर जी हो गया हमारा रिसर्चर एज एन इंस्ट्रूमेंट भी इसके अंदर यूज हो सकता है, कि रिसर्चर ऑब्जर्व कर रहा है इज बीइंग पार्ट ऑफ इट। ठीक है। हम रिसर्च डिजाइन जब हम पढ़ रहे होंगे तो वी विल बी डिस्कसिंग इन दैट, वहाँ पे सर्टेन रिसर्च मेथडोलॉजीज होती हैं क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव अप्रोच की, जिसके अंदर रिसर्चर खुद एक पार्टिसिपेंट बना हुआ होता है। ठीक है, रिसर्च के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा होता है। फिर होता है जी फ्लेक्सिबल एंड इटरेटिव। ये फ्लेक्सिबल होता है, उसके अलावा अंडरस्टैंडिंग इन डीप, डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होती है, यानी कि किसी भी चीज को कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, जैसे मैंने बताया कि होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होती है, तो डीप में अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इस ये वाला इंटरप्रिटेरिज्म जो है उसको हम करते हैं, एडॉप्ट करते हैं पैराडाइम को। ठीक हो गया। फिर इसके अंदर कॉन्टेक्चुअलाइजेशन होती है, एज बी डिस्कस अर्लियर कि कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर आता है जी क्रिटिकल थ्योरी, या इसको हम प्रेगमेटिज्म भी कहते हैं। क्रिटिकल थ्योरी इज theoretical perspective that emerged from फ्रैंकफर्ट स्कूल, और इसके अंदर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होती है, यानी हम एक ही टाइम पे मल्टीपल डिसिप्लिन्स के को मर्ज करके रिसर्च करते हैं। हम एक पर्सपेक्टिव में रिसर्च नहीं करते, हम मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स में रिसर्च करते हैं। फिर एनालाइज कॉम्प्लेक्स सोशल फिनोमेना फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव, फोस्टरिंग होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इशू एट द हैंड। अब भी हमने इसको पहले भी डिस्कस किया है कि ये हमेशा इस चीज को फोकस करता है कि सोशल इन्वायरमेंट उस वक्त क्या है। ठीक है। किसी भी चीज
जो कोई भी चीज जब हो रही है तो उसके अंदर क्या क्या सोशल फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं वो पर्टिकुलर चीज करने के लिए। ठीक है। तो दिस इज हाउ सोशल क्रिटिकल थियरी वर्क्स और प्रेगमेटिक अप्रोच वर्क्स। इसके अंदर सोशल क्रिटिक होती है, हम फिर सोसाइटी के ऊपर क्रिटिक जो हम करते हैं कि ये फॉर एग्जांपल इमरान खान की गवर्नमेंट के ऊपर हमने क्रिटिसाइज किया, या अभी हम शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं कि महंगाई कर दी, पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दी, ये कर दिया वो कर दिया। तो ये हम सोशल क्रिटिक करते हैं बिकॉज ऑफ दिस सोशल इन्वायरमेंट वी आर लिविंग इन, और जो सोशल फैक्टर्स या सोशल इंडिकेटर्स हमें दिखाते हैं या बताते हैं उसी के बेसिस पे हम किसी को क्रिटिसाइज या अप्रिशिएट करते हैं। ठीक हो गया। फिर है जी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, हम इसमें देखते हैं कि ओवरऑल हिस्ट्री में क्या होता रहा है एंड नाउ व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट इज, तो इसको हम कंप्लीट अंडरस्टैंड करते हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर। फिर पावर एंड आइडियोलॉजी है। पावर क्या होता है वैसे, बाय द वे, पावर इज समथिंग हैविंग अ यू नो टू मेक समवन डू समथिंग इज अ पावर। मतलब मैं किसी को कुछ करूं, करने के लिए, और वो करे, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास किसी को कोई चीज करवाने का पावर है। क्लियर। और आइडियोलॉजी क्या है? आइडियोलॉजी इज माय बिलीफ एक्चुअली अबाउट समथिंग। जैसे किसी भी चीज के बारे में जो मेरा नजरिया है वो मेरी आइडियोलॉजी है। और आइडियोलॉजी एंड पावर आर वेरी वेरी मच इंटर रिलेटेड। क्योंकि अब क्योंकि हम सोशल क्रिटिक बन चुके हैं, या तो हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया के आने के बाद जिस तरह से इमरान खान के ऊपर उसकी गवर्नमेंट को हटाया गया एंड ऑल दैट, तो उस सारे प्रोसेस में हम इसको विटनेस कर रहे थे, सामने हमारे हो रहा था। ठीक है। तो अब आर्मी के उसके बाद इमरान खान की इमेज को कितना भी बुरा बनाने की कोशिश की गई, पर हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया एज एन नेशन, या जो कौम है उसने उसको इतना क्या कहते हैं, एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि पावर जो है, जो पावरफुल कॉरिडोर्स हैं, जिसको हम सिंपल वर्ड्स में कहें कि हमारी स्टेब्लिशमेंट, तो उसने ट्राई किया कि इमरान खान की इमेज को बुरा बनाया जाए, मगर उसकी इमेज को बुरा नहीं बनाया जा सका। क्योंकि हमें पता था कि ये खामखा सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की इमेज को बुरा बनाने के लिए किया जा रहा है। ठीक है। तो हमारी आइडियोलॉजी इमरान खान के बारे में जो नजरिया था वो चेंज नहीं हुआ, जबकि पावर की वजह से पावरफुल लोगों ने उसको चेंज करने की कोशिश की। सो द पावर इज बेसिकली हमारी आइडियोलॉजी को चेंज करता है एट टाइम्स। जैसे पाकिस्तान के बारे में जो मैंने एग्जांपल दी, द वे वी think about Pakistan and the emotions that we feel about Pakistan are basically, induced in our brains or in our minds through the powerful corridors. ठीक है। स्टेट की तरफ से हमारे अंदर वो चीजें घुसा दी गई हैं। जैसे कोई भी टेररिस्ट बनता है तो उसकी आइडियोलॉजी को पहले चेंज किया जाता है। ठीक है। और आइडियोलॉजी को चेंज करता क्या चीज है? वही जो आपसे जो भी चीज करवाना चाहते हैं। जैसे कोई टेररिस्ट ग्रुप है, वो आपसे टेररिज्म करवाना चाह रहा है, तो वो पावरफुल तब होगा जब आप उसके कहने पे वो चीज करें। ठीक है। और उसके लिए ऑब्वियसली दे विल यूज डिफरेंट टेक्निक्स। तो देन अगेन, अगर आप किसी के कहने पे कोई चीज कर लें तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर उसको पावर है। ठीक है। और आपने उस चीज को एक्सेप्ट किया है। क्लियर। तो दिस इज हाउ पावर एंड आइडियोलॉजी वर्क्स। एंड देन फिर सोशल चेंज आती है। क्रिटिकल थ्योरी में जो हम रिसर्च करते हैं, और उसके बाद हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और डिफरेंट फैक्टर्स को अंडरस्टैंड और एनालाइज करने के बाद हम कहते हैं कि यार ये गलत है, ये सही है। अब इस रिसर्च के जो रिजल्ट्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम कोशिश करते हैं कि हम आगे से इस चीज को चेंज करें, सोशल रियलिटी को चेंज करें। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक हो गया। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। फिर हम रिसर्च मेथोडोलॉजी की डेफिनेशंस पढ़ते हैं, एंड उसके बाद हमारे पास अप्रोचेस हैं क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, और फिर हम
ये हम एक्टिविटी है इसके साथ, तो हम क्वालिटेटिव यहाँ तक आज करेंगे। तो वी आर here. Anybody has any questions, you can ask or you can write. क्लियर है? आगे चलते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी सर है मेरा एक क्या? क्वेश्चन है। ओके ओके ओके, who's this? सर मैं थोड़ा कनेक्टिविटी इशू हो गया था, मैं पूछ रही थी कि सर ये हम जो इंटरप्रेटिविस्ट अप्रोच लेते हैं जब किसी भी चीज की, तो उसमें हम हम्म बेसिकली सब्जेक्टिवली चीजों को देखते हैं। लाइक हम्म अगर फॉर मी आई कंसीडर डिक्टेटरशिप एज अ गुड थिंग, तो हम्म मैं अगर ही कंडक्ट रिसर्च अपनी रिसर्च करूंगी तो वो मैं उस पर्सपेक्टिव को साथ लेकर चलूंगी, बिकॉज मेरे लिए रियलिटी वो है। हम्म So, but sir, whenever we talk about research, we say हम्म that it's a factual thing on which we can rely. ठीक है हम्म सर। तो फिर इंटरप्रेटिविस्ट अप्रोच तो रिसर्चर के अपनी माइंड से शेप की हुई चीज होती है, तो हम उस पर किस हद तक रिलाई कर सकते हैं? ऑल राइट, आई होप मैं नाइस। अपना क्वेश्चन या या क्लियर या कर या सकूं। या या मैं आपका समझ गया। आप कह रही हैं कि जो इंटरप्रेटिविज्म है उसके अकॉर्डिंग, तो आपका जो पर्सपेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग आप रिसर्च करते हैं, राइट? यही आपका यस क्वेश्चन है। यस यस। तो उसके जी ऊपर सर। हम कैसे रिलाय कर सकते हैं, जबकि रिसर्च का तो मेन पर्पज ही ये है कि हम उस पर रिलाय करते हैं। यही क्वेश्चन है ना? एग्जैक्टली सर। ऑल राइट। यस यस। तो एक्चुअली इंटरप्रेटिविज्म में आपका बिलीफ यहाँ तक तो काबिल कबूल है कि रियलिटी सब्जेक्टिव है, और रियलिटी सब्जेक्टिव रियलिटी होगी तो हमें वर्बल डेटा चाहिए होगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है बात, आपको भी पता है मुझे भी पता है। नाउ इसके बाद जो है ना, इसके बाद आपका जो पर्सपेक्टिव है उसको वैल्यू नहीं देनी, उसको हम वैल्यू नहीं देंगे। आप जो भी बात बताओगे, आपको जो वर्बल डेटा पार्टिसिपेंट से या जिसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो उससे जो भी डेटा मिलेगा वो आप बताओगे, आप अपनी तरफ से कुछ नहीं बताओगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने को एक बात बताई कि अगर मैं रिसर्च करना चाहती हूँ कि डिक्टेटरशिप अच्छी चीज है या बुरी चीज है, ठीक है, तो आप ये नहीं बताओगे कि मुझे लगता है कि डिक्टेटरशिप अच्छी है या बुरी है। ठीक है, आप लोगों से जाके इंटरव्यू करोगे और लोग आपको बताएंगे कि डिक्टेटरशिप अच्छी है या बुरी है। ठीक, फिर उसके बाद आप बताओगे कि मुझे, मैंने फॉर एग्जांपल 10 लोगों से पूछा और 10 में से 9 लोगों ने, जैसे कोलगेट का इश्तेहार आता है ना, 9 आउट ऑफ 10 डेंटिस्ट सजेस्ट दिस टूथपेस्ट। ठीक है, तो आप बताओगे कि भाई मेरा जो है मैंने 10 लोगों से ये इंफॉर्मेशन ली और उन 10 में से 9 लोगों ने कहा कि डिक्टेटरशिप अच्छी है, तो इसलिए मेरा भी ये पर्सपेक्टिव बन रहा है कि रिसर्च अच्छी है, सॉरी डिक्टेटरशिप अच्छी है। ठीक है, या डिक्टेटरशिप में फायदे हैं या जो भी चीज। ठीक है, तो आपका अपना पर्सपेक्टिव नहीं है इसके अंदर, रादर आपका पर्सपेक्टिव वहां तक था, बिलीफ वहां तक था जहां तक आपका रियलिटी सब्जेक्टिव है। हर किसी का एक्सपीरियंस डिक्टेटरशिप में डिफरेंट हो सकता है, हाँ हो सकता है। फिर अगर सब्जेक्टिव है तो डेटा कौन सा चाहिए, वर्बल डेटा चाहिए, हाँ चाहिए, ठीक है हम लेते हैं। फिर हम जब मेथडोलॉजी चूज करेंगे, फॉर एग्जांपल जो भी हमने मेथडोलॉजी ग्राउंडेड थ्योरी फॉर एग्जांपल हमने यूज की, तो वो भी ठीक है। फिर हमने इंटरव्यू में डेटा कलेक्शन टूल जो यूज किया हमने, वो हमने इंटरव्यू किया, हाँ ठीक है, हमने क्वेश्चंस बना लिए, इंटरव्यू करेंगे हम लोगों से, इंटरव्यू किया, हाँ जी कर लिया। उसके बाद हमने उस इंटरव्यू को एनालाइज करना है, हाँ भी हम एनालाइज कर रहे हैं थेमेटिक एनालिसिस के थ्रू। थेमेटिक एनालिसिस के थ्रू हमने एनालाइज करने के बाद हमें पता चलेगा कि लोगों ने ये फायदे बताए, ठीक है, और ये नुकसान बताए, मगर फायदे जो हैं वो नुकसान से ज्यादा बताए हैं। ठीक है, और उनकी इंटेंसिटी या उनका इम्पैक्ट ज्यादा है, तो इसलिए डिक्टेटरशिप बेटर है। ये आपकी रिसर्च बनेगी। आपका उसके अंदर आपका कोई भी अपना पर्सपेक्टिव इन्फ्लुएंस या इंड्यूस नहीं हो रहा। ठीक है, समझ आई?
Yes, sir. Yes, of course. It's quite clear अगर now. नहीं आई तो मैं दोबारा इसको ट्राई करता हूँ समझाने के लिए। बट नहीं नहीं सर, मुझे समझ आ गई है, बट मुझे इसमें भी एक चीज मेरे कंफ्यूजन है। मतलब जहन में आ रही है। हम्म। कंफ्यूजन भी कह सकते हैं आप। एक और क्वेश्चन कह ओके लें। ओके वो ये है कि ओके। जैसे आप कहते हैं हम थीमेटिक एनालिसिस करते हैं, एंड अगर मैंने रिसर्च कंडक्ट की है जिसमें से 80% लोग जो हैं वो पॉजिटिव इमेज रखते हैं डिक्टेटरशिप की, बट द 20% नहीं रखते। तो अगेन सर वही बात आती है कि जरूरी तो नहीं होती है जो मेजोरिटी हो वो सही हो हमेशा, क्योंकि हमारे पास बहुत से नैरेटिव ऐसे बिल्डअप हो चुके होते हैं। लाइक आप इस्लामोफोबिया ले लें, क्योंकि इस्लामोफोबिया पे जी 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 लिटरेचर इस जी। तरह से प्रोड्यूस किया गया कि नाउ मोस्ट ऑफ द नॉन मुस्लिम्स और इवन मुस्लिम्स डू कंसीडर इस्लाम एज अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी और थिंग्स लाइक दैट। तो फिर सर हम उसको डीकंस्ट्रक्ट कैसे करें, Yeah, और फिर I हम उस really, पर really किस तरह understand रिलाई this. करें? See, when we talk about, na, see, when we say कि this much percentage of people think dictatorship is good, this much percentage of people think dictatorship is not good. तो जब percentage की बात आती है ना, तो it directly means that we are talking about numerical data. When we are numerical data, then we are actually talking uh, talking about positivism, right? क्योंकि न्यूमेरिकल डेटा कौन सी पैराडाइम में यूज हो रही है? न्यूमेरिकल डेटा पॉजिटिविस्ट। पॉजिटिविज्म में यूज हो रही है। क्लियर? यस यस सही है। यस सर। इसके अंदर जो इंटरप्रेटिविस्ट है, इसके अंदर हम डेटा को ये नहीं बताते कि मेजॉरिटी या मिनॉरिटी या इतना परसेंट या इतना परसेंट। ठीक है, हम बताते हैं कि हमने ये रिसर्च की इन लोगों से। ठीक है, इतने लोग थे, उनसे हमने पूछा, और इन लोगों में से ये हमें जवाब दिए। ठीक है, जो भी हमें फायदे मिले, फॉर एग्जांपल डिक्टेटरशिप में इकोनॉमी अच्छी होती है, एग्जांपल के तौर पे, या लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो जाता है, या उसके अलावा जो जॉब इन्फ्लेशन है वो कम हो जाती है, या उसके अलावा और हम कह सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये सारे फायदे होते हैं फॉर एग्जांपल डिक्टेटरशिप के। तो ये हम बताते हैं कि ये फायदे बताए हैं इन लोगों ने, ना कि इतना परसेंट लोगों ने। समझ आई? तो जी वहां पे सर। न्यूमेरिकल डेटा बिल्कुल भी हम नहीं बात करते। हाँ, जहां तक बात है ये जो आपने इस्लामोफोबिया की बात की, तो जो लिटरेचर प्रोड्यूस हो चुका है ऑलरेडी, तो जाहिर है उसको डीकंस्ट्रक्ट करने के लिए ना, वी हैव टू बिल्ड द नैरेटिव, क्योंकि ये एक नैरेटिव बन चुका है। ठीक है, कि दैट इज द पार्ट ऑफ डिस्कोर्स, नॉट पर्टिकुलरली रिसर्च। समझ आई? जी Although सर, मैं समझ रही हूँ आपकी research बात। is part of discourse, but research is not whole discourse. And the way people think about research, rather Islamophobia, so that is not only because of the research they see it. This is also because of the way people portray Islam in front of them. जैसे इंटरनेशनल न्यूज आउटलेट्स किस तरीके से इस्लाम को पोर्ट्रे कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ईरान हमने अटैक किया इसराइल पे, तो उस पे हमने बहुत बड़ा बवेला इंटरनेशनल मीडिया में बच गया कि भाई एक मुस्लिम कंट्री ने अटैक कर दिया ईरान पे, सॉरी इसराइल पे। बट जब इसराइल अटैक कर रहा था तो उसको वो डिफरेंट तरीके से बता रहे थे, राइट? सो द पॉइंट इज द वे यू टेल द स्टोरी मेक्स पीपल्स परसेप्शन, दैट इज डिस्कोर्स, दैट इज नॉट रिसर्च बेसिकली। क्लियर बाबा? तो आप नैरेटिव कैसे डेवलप करते हैं? टू थ्रू टेलिंग योर स्टोरी। आप अपनी स्टोरी को कितनी इफेक्टिव तरीके से बता सकते हैं लोगों को, ताकि उनका पर्सपेक्टिव या उनका जो ओपिनियन है या परसेप्शन है आपके बारे में, वो आपकी स्टोरी के बेसिस पे बनेगा। तो जितनी इफेक्टिव स्टोरी टेलिंग आप करोगे, उतनी ज्यादा इफेक्टिव आपकी परसेप्शन होगी, या उतनी अच्छी आपकी परसेप्शन होगी दूसरों के माइंड में। ठीक है, तो दैट इज डिस्कोर्स, नॉट रिसर्च। क्लियर? यस सर, यस, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट नो सर। नो वरीज, नो वरीज बाबा। एनीबडी हैज एनी अदर क्वेश्चन? ओके जी, कमिंग टू रिसर्च मैथोलॉजी।
तो रिसर्च methodology is a systematic and objective investigation conducted to discover new knowledge or validate existing knowledge. रिसर्च करने के दो मेन पर्पसेस होते हैं। एक पर्पस है या तो हम कोई न्यू नॉलेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर हम किसी ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड नॉलेज को क्या कर रहे हैं, हम वैलिडेट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे रिसर्च के रिसर्च गैप का एक टाइप होता है जिसको हम पॉपुलेशन गैप कहते हैं। ठीक है, मतलब उस वो गैप तब होता है कि जब कोई भी रिसर्च किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन या पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में हुई होती है, मगर वो रिसर्च किसी और इन्वायरमेंट में नहीं होती। मिसाल, दो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट ए, इन्वायरमेंट बी। तो इन्वायरमेंट ए में रिसर्च की गई और इन्वायरमेंट बी में वही रिसर्च नहीं हुई अभी तक। तो उस रिसर्च को पढ़ने के बाद, हमें लिटरेचर को फाइंड आउट करने के बाद हमें पता चला कि इस इलाके में इस मतलब जो पॉइंट ए है या एरिया ए है, ठीक है, उस एरिया में एक रिसर्च हुई है, वही रिसर्च उस ए पॉपुलेशन में जो हुई है वो बी पॉपुलेशन में मिसिंग है। तो वहां पे बना पॉपुलेशन का गैप। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, वही ए वाली रिसर्च को रिप्लिकेट करेंगे पॉपुलेशन बी पे भी। तो इसको कहते हैं वैलिडेशन, यानी एक रिसर्च दो डिफरेंट जगहों पे करना, ताकि देख सकें कि जो रिजल्ट ए ने लिए हैं वो सही भी हैं या यहाँ पे रिजल्ट डिफरेंट आते हैं। ठीक है, अगर तो ऑब्जेक्टिव रिसर्च है, यानी कि जो न्यूमेरिकल डेटा के थ्रू हम रिसर्च करते हैं वो है, और उसके रिजल्ट्स डिफरेंट आते हैं, तो फिर जाहिर है पहले वाली रिसर्च या तो पहले वाली गलत है या दूसरे वाली गलत है। अगर तो ये इंटरप्रेटिविस्ट है तो जाहिर है डिफरेंट आने आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, अगर आते हैं तब भी ओके है, नहीं आते तब भी ओके है। ठीक है, तो अगेन द पॉइंट इज कि वैलिडेट करने के लिए एक नॉलेज को दूसरी जगह हम वही रिसर्च करते हैं। तो एक तो ये चीज। दूसरा, पहली जब पॉपुलेशन ए पे रिसर्च की गई तो वहां पे एक न्यू नॉलेज प्रोड्यूस की गई। अब उस न्यू नॉलेज को वैलिडेट करने के लिए हमने पॉपुलेशन बी पे ट्राई किया और वही सेम रिजल्ट आए, तो यानी नाउ वी आर वैलिडेटिंग इट। ठीक है, तो दो पर्पस है रिसर्च के, एक या तो प्रोड्यूस करेंगे, दूसरा या तो क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट का मतलब ये है कि सेम रिसर्च सेम प्रोटोकॉल के साथ, सेम प्रोसीजर्स के साथ दूसरी पॉपुलेशन पे करना। ठीक है, दैट इज वैलिडेशन। कोई एक रिसर्च करना जो कि बिल्कुल नई हो और नए तरीके किसी नई चीज के बारे में मालूम कर रही हो, इंफॉर्मेशन दे रही हो, तो दैट इज टू प्रोड्यूस न्यू नॉलेज। ठीक है, तो दैट इज द पर्पस ऑफ रिसर्च। और सिस्टमेटिक तो है ही, वी डिस्कस्ड दैट अर्लियर। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस क्या है रिसर्च की। ठीक है, रिसर्च मेथडोलॉजी की क्या इम्पोर्टेंस है, इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिसर्च मेथडोलॉजी। किसी भी रिसर्च को करने के लिए उसका जो फ्रेमवर्क है, या जो उसका नक्शा, जिसको हमने पहले शुरू में डिस्कस किया था कि नक्शा होता है, तो नक्शा जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि कोई भी रिसर्च किस तरीके की होगी, कितनी इम्पैक्टफुल होगी, कितनी उसकी रिलायबिलिटी होगी, वैलिडिटी होगी या क्रेडिबिलिटी होगी। ठीक है, और वो कितनी एक्यूरेट होगी। ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी कि उसकी रिसर्च मेथडोलॉजी अप्रोप्रिएट है या नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल हम कोई रिसर्च अप्रोच अप्लाई करते हैं जो एक्यूरेट है, अप्रोप्रिएट है, तो उसके रिजल्ट्स ऑब्वियसली हमें एक्यूरेट मिलेंगे। अगर रिसर्च मेथडोलॉजी हम अप्रोप्रिएट यूज नहीं करेंगे तो हमें जो रिजल्ट्स हैं वो एक्यूरेट नहीं मिलेंगे। समझ आई? और अगेन रिसर्च मेथडोलॉजी को चूज करने का जो तरीका है, दैट इज कि हमारा बिलीव क्या है रिसर्च किसी भी रियलिटी के बारे में। ठीक है, और रियलिटी यानी ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है, फिर उसके लिए डेटा कौन सा चाहिए,
टाइप ऑफ डेटा कौन सा चाहिए, न्यूमेरिकल डेटा चाहिए या वर्बल डेटा चाहिए। फिर उस डेटा को जो भी डेटा चाहिए उसको कलेक्ट किस तरीके से करें, एनालाइज किस तरीके से करें, और उसको इंटरप्रेट किस तरीके से करें। और तो ये सारी चीजें आपकी मेथडोलॉजी में आती है। क्लियर? तो ये सारी चीजें अगर आपकी क्लियर हो जाती हैं, अप्रोप्रिएट यूज कर लेते हो आप मेथडोलॉजी, तो आपकी रिसर्च क्रेडिबल बन जाती है। क्लियर सो फार? और डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? Yes, sir, it's clear. ओके, नाउ वी कम टू रिसर्च अप्रोच। अच्छा, रिसर्च मेथडोलॉजी के अंदर एक टर्म होती है रिसर्च अप्रोच। ये मतलब जैसे पैराडाइम अम्ब्रेला टर्म थी, उसके अंदर ओंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी एंड मेथडोलॉजी थी। फिर मेथडोलॉजी के अंदर वी हैव एन अदर अम्ब्रेला सब टर्म, दैट इज अप्रोच। अप्रोच के अंदर वी हैव अगेन सब टर्म्स, दैट इज क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड मिक्स मेथड। ये बंद क्यों या बाबा, वापस लगाओ। ओके, सो सो अब रिसर्च अप्रोच होती क्या है एक्चुअली, लेट्स डिसाइड दैट। ठीक है, रिसर्च अप्रोच इज refers to the overall strategy or the plan that guides researcher in conducting the study. It outlines the general perspective and direction of the research, कि किस डायरेक्शन में हम रिसर्च करें। अब जितना हमने पहले अभी तक पढ़ा है, अभी तक जितना हमने पढ़ा है, दैट इज पार्ट ऑफ हमारी एब्स्ट्रैक्ट डेटा या एब्स्ट्रैक्ट बिलीव्स, जो हम किसी को लिख के नहीं बता सकते। ठीक है, कि हमारा क्या बिलीव है एंड ऑल दैट। बट अब आती है रिसर्च मेथडोलॉजी, और उसके अंदर अप्रोच, और उसके अंदर रिसर्च डिजाइन। ये सारी चीजें हम लिख के बताते हैं अपनी रिसर्च में। आपने देखा होगा कि रिसर्च आर्टिकल्स के अंदर रिसर्च मेथडोलॉजी या प्रोसीजर्स या प्रैक्टिसेस मेंशन्ड होती हैं। ठीक है, कोई भी आर्टिकल आप उठा लें, जैसे फरमान सईद है, ये इंजीनियरिंग के हैं। तो इंजीनियरिंग की जो रिसर्च होती है उसके अंदर जाहिर है, अगर डिफरेंट क्या कहते हैं मशीनरी यूज होती है, डिफरेंट काइंड ऑफ और भी एलिमेंट्स, और वो डिफरेंट चीजें डिपेंडिंग ऑन व्हाट इंजीनियरिंग इट इज। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो उसके अंदर डिफरेंट करंट को स्टडी कर रहे हैं या किसी भी चीज़ को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो वो फिर अगेन उसमें जो जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी, बैटरीज इस्तेमाल होंगी, कैपेसिटर इस्तेमाल होगा, या फॉर एग्जांपल और जो भी इनकी सारी चीज़ें होती हैं, या मशीनरी या आइटम्स या मटेरियल्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें मेंशन करते हैं। तो वो क्या क्या होंगी, क्या कब कौन सा इस्तेमाल करना है, कौन सी चीज़ कहाँ पे इस्तेमाल करनी है, डेट ऑल इज रिसर्च अप्रोच। ठीक है, रिसर्च अप्रोच इज बेसिकली कि डेटा क्या होगा। ठीक है, जैसे हमारी ओंटोलॉजी थी, और सॉरी एपिस्टेमोलॉजी थी, कि एक टाइप ऑफ डेटा क्या होगा, सेम अप्रोच में है कि अप्रोच हमारी ओवरऑल बताएगा कि हम क्वालिटेटिव मेथड यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, फिर क्वालिटेटिव मेथड के अंदर वी हैव डिफरेंट थिंग्स, जैसे ग्राउंडेड थ्योरी है, जैसे हमारे पास और डिफरेंट काइंड ऑफ रिसर्च है। ठीक है, तो वो फिर हम उसके अंदर डिस्कस करते हैं। तो अप्रोच इज द ओवरऑल प्लान। जैसे रिसर्च मेथडोलॉजी इज अ सिस्टमैटिक प्लान, सिस्टमैटिक प्लान का जो ओवरऑल है या जनरल वर्जन है वो अप्रोच है, और जो उसका स्पेसिफिक वर्जन है वो डिजाइन है। ठीक है, research designs the detailed plan, a blueprint that outlines the specific procedures and methods used to address collecting data, research questions or objectives. It provides structure for collecting, analyzing and interpreting data. क्लियर? कि रिसर्च डिजाइन के अंदर एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप होगी, बट वो चीज ओवरऑल जनरली हम अप्रोच में डिस्कस करेंगे। और अप्रोच मेथोडोलॉजी का पार्ट है, मेथोडोलॉजी पार्ट है फिर जी इसका अपना पैराडाइम का। क्लियर? आते हैं जी, अप्रोचेस कौन कौन सी हैं हमारे पास। क्वालिटेटिव अप्रोच है, क्वांटिटेटिव अप्रोच है, मिक्स मेथड अप्रोच है, और हमारे पास रिसर्च डिजाइन है। हर किसी की अलग अलग 5
5 क्वांटिटेटिव की, 5 क्वालिटेटिव की एंड 4 मिक्स मेथड की। अच्छा, वन थिंग लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट, दैट यहाँ पे जो मेंशन की गई हैं रिसर्च डिजाइंस, इट इज नॉट नेसेसरी कि सिर्फ यही डिजाइन्स हो, बट ये मेजर डिजाइन्स हैं, इनके अंदर डिफरेंट और डिजाइन्स भी होती हैं। ठीक है, सो लिहाजा व्हेन यू हियर सम अदर, तो इसका मतलब ये बिल्कुल ये मत समझिएगा कि सर ने हमें नहीं पढ़ाया समथिंग, क्योंकि ऑब्वियसली देर आर डिफरेंट हमारे क्या कहते हैं, देर आर पीपल स्कॉलर्स, डिफरेंट स्कॉलर्स हु हैव presented different things in different ways। ठीक है, तो the book that I refer to, that is जेनिटा's बुक, मैं आपको शेयर करूंगा इंशाल्लाह। उसके अंदर ये मेंशन थी अप्रोचेस एंड डिजाइंस, तो इस तरीके, इसलिए मैं यहाँ पे ये मेंशन किए हैं। ठीक है, सो दिस इज फॉर टुडेज सेशन, और इंशाल्लाह हम क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, क्योंकि इनके अंदर हमारे पास डिफरेंट वो हैं एक्टिविटीज हैं, तो फिर वो हम इसको कल करेंगे इंशाल्लाह। सो एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन सो फार, यू कैन आस्क, वी हैव 5 minutes लेफ्ट फॉर दिस टुडेज सेशन। एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन? यस सर, वो जो भी क्वेश्चन थे वो बीच बीच में पूछ लिए। थैंक यू। ऑलराइट, एनीबडी एल्स? किसी को भी कोई क्वेश्चन नहीं है? सर मेरा एक क्वेश्चन है कि यस यस। हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे जो मेथोडोलॉजी है, हम जो यूज कर रहे हैं, वो हमारी रिसर्च के मुताबिक सही जा रही है या नहीं जा रही है? क्योंकि हम जो पहले भी जो हम प्रोसेस करते आएंगे वो तो सही है, लेकिन हमें ये कैसे फिर मालूम होगा कि हमारी मेथोडोलॉजी बिल्कुल परफेक्ट है? वो जब हम कल हम पढ़ेंगे ना, हमारे पास रिसर्च मेथोडोलॉजीज, जो रिसर्च डिजाइन हैं डिफरेंट, तो उसके अंदर हर डिजाइन के साथ मैं आपको बताऊंगा कि ये डिजाइन कब कब हम यूज करेंगे, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे, तो हमको कौन सी डिजाइन हम कब यूज करेंगे, किन ऑब्जेक्टिव्स के साथ, किस टाइप के ऑब्जेक्टिव्स होंगे तो हम ये डिजाइन यूज करेंगे, किस टाइप के ऑब्जेक्टिव्स होंगे तो ये डिजाइन यूज करेंगे। क्लियर? तो ये इंशाल्लाह हम हमारा कल का जो सेशन होगा, तो उसके अंदर वी विल कवर दिस। मोटा मोटा ये है कि इट डिपेंड्स ऑन योर ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च क्वेश्चंस। क्लियर? तो जिस यस टाइप का सर। आपका ऑब्जेक्टिव होगा, या जिस टाइप का आपका क्या कहते हैं रिसर्च क्वेश्चन होगा, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपने रिसर्च डिजाइन चूज करनी होती है। अगर आप उसके अकॉर्डिंग करते हो चूज, तो देन ऑब्वियसली इट विल यील्ड अप्रोप्रिएट एक्यूरेट रिजल्ट्स, और वो रिसर्च मेथोडोलॉजी आपके लिए अप्रोप्रिएट होगी। सो दिस इज हाउ इट गोज। ओके सर, थैंक यू। ऑलराइट, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस? ऑलराइट, सो लेट्स कॉल इट एन डे। अभी हम इस मीटिंग को एंड करते हैं, एंड आई होप ये रिकॉर्डिंग हुई हो, एंड आई एम गोइंग टू शेयर दिस लिंक विथ यू पीपल इंशाल्लाह एज सून एज आई गेट द लिंक। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।